How exactly do we make our YouTube documentaries? What is our scripting process like? And how can you, as a beginner, make such cinematic videos for your business? This is the Cutting Edge School, where we teach professionals the most valuable skills in the market. In episode 1, I explained how to plan your editing career and choose a niche that will pay you enough money. In episode 2, I taught you about the core components of a video and how you can stand out as a professional video editor in a crowded freelancing market. In episode 3, I taught you the basics of Adobe After Effects and also showed you my entire recording studio. In this episode 4, I will explain you the mindset we use as a team to ideate, script, and execute our most loved videos. But before that, please remember 6 key things. Number 1, do not restrict yourself to just being an editor. With AI coming in, you will be expected to act more like a director and not just an editor, which means you need to have a strong understanding of the entire life cycle of a video, right from the scripting stage till the final sound design. Number 2, understand the role of impressions, CTR, and AVD. You don't get a hit video just because of great editing. In our previous 3 episodes, I've explained how a good topic and a script is way more important than any other editing style. Websites like Google Trends and vidIQ can sort of help you spot these trends early on. A topic that is trending will always get more views and retention because when thousands of people make a video on the same topic, your video comes in viewers' recommendations or within search queries, which will boost your video's impression count and CTR, which is the click-through rate. That is how many people clicked on your video. Now, impression count is the number of people your video was recommended to. The CTR is a percentage of people who clicked on your video after it was recommended to them. Therefore, timing plays a huge role in the success of your video. Wrong timing or delayed timing will affect your impression count and further the CTR count. But how is this relevant for an editor? Because as a professional who's working for a business or for a YouTuber, to crack good timing, you need good management skills and systems to quickly jump on a trend and make a good video. If you have great talent but bad systems, you will not be able to manage your time and energy, and you will miss out on the timing of the video. Your editing will not help a video if the impression count or CTR is low. Once you have CTR, it is your scripting and editing that actually increases the AVD, which is the average view duration. Your AVD multiplied by CTR creates watch time. The more watch time you have, the more YouTube will recommend your video to other people. If all of this was confusing, please go to ChatGPT and ask it to explain you YouTube impressions, CTR, AVD, and watch time on YouTube as if you're a 10-year-old, or you can watch our previous 3 episodes as well. On number 3, try to read in between the lines of what I am doing in all of these review calls. I have spent the last 4 months learning and recording every little detail of our video production process, so you can learn directly from our real projects. Hence, don't just listen to these videos. Notice how I speak, arrange, and browse through every little aspect of the editing process. Number 4, please don't bring up controversies in the comment section. Our video on Samir Raina was created way before the latent controversy. I want you to keep the controversy away and only focus on learning how we scripted and edited that video. This course is not about discussing a person or a content creator or any controversy, but to help people become better at making great videos and documentaries. Number 5, English viewers need to use subtitles. Most of these videos are in Hindi because our first language to communicate in the company here in India is in Hindi. But we've hired a translator to write English subtitles. Number 6, please don't freak out listening to my unfiltered feedback. I must warn you that I'm a very detail-oriented colleague. I run my company not like a family, but like a sports team, where every person has equal responsibility to live up to a high standard. Hence, you might see me criticizing and going deep into every little detail. So here is a recording to show you how we ideate a documentary before we even start editing or finding music. Now, for every video I show you, you need to notice certain things and kind of share your notes for each and every call in the comment section of this video. This course is free because I want my sincere subscribers to actually change their lives by learning a skill. But that will not happen until unless you take notes and share your learnings below. In fact, we will go through the comment section of this video and find high potential video editors by seeing and reading all the things that you notice. And if you show us that you are learning sincerely, we will hire you as an editor
as an intern directly from the comment section below at a comparative internship stipend for both remote and offline roles in New Delhi. For this specific video, you need to observe how I formatted the entire script and I've split it into chapters, how I added an unanswered question before the next chapter started, and how I kept asking questions from other people in the call by waiting, by patiently listening to get their feedback. Number 4, how the entire process was extremely iterative, which means that nobody writes a great script in their first attempt. Number 5, notice how prepared my team members were. They had done their full research before they jumped on the call, which is very, very important. So let's get started. Alright, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम अपना 4th हिंदी प्लेबुक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एक रफ स्क्रिप्ट मेरे पास है. यूट्यूब पे एट दिस पॉइंट ऑन सैटरडे 28 दिसंबर समीर रायना इन इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है. तो हमने एक वीडियो बनाया है डिकोडिंग समीर रायना's ब्रेन एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई इंडियाज गॉट लेटेंट इतना वायरल कैसे हुआ, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ इट्स फॉर्मेट और ऑफ सेलिब्रिटीज. ऐसे फॉर्मेट्स बहुत लोगों ने बनाए हैं, सेलिब्रिटीज भी हर वीडियो पे आते हैं, बट किसी को 20 मिलियन व्यूज नहीं मिलते. तो स्क्रिप्ट में भी बताऊंगा, और ये स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है. बेसिकली सारे टीम मेंबर्स अभी मेरे साइड पे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ेंगे. मैं एक एक पैराग्राफ बोलूंगा, 1.5 मिनट के बाद पॉज लूंगा, सबसे पूछूंगा फीडबैक, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, और फिर हम उसको लिखेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पिछले 6 महीने में समीर रायना ने पूरे YouTube स्टैंड अप कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया है. सबसे शॉकिंग बात यह है कि जहां एक तरफ डार्क कॉमेडी आर्टिस्ट या रोस्ट शोज को एक भी अच्छा स्पॉन्सर लाने में स्ट्रगल होती है, वहीं दूसरी तरफ समीर रायना बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ काम करके इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स, शो स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज, एड रेवेन्यू एंड स्टैंड अप टूर से करोड़ों कमा रहे हैं. एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, उसने 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया? वेलकम टू द प्लेबुक, जहां हम बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढते हैं. आज हम डिकोड करेंगे समीर रायना की जर्नी और उनकी स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जिनकी वजह से इंडियाज गॉट लेटेंट आज यूट्यूब पर इतनी बड़ी सेंसेशन बन गया है. तो चलिए आज का पहला अध्याय शुरू करते हैं. राइज होगा, ब्लैकआउट होगा, चैप्टर 1 सिर्फ लिखा होगा और फिर फेड आउट होके वो प्रॉब्ली बुक वाला ही सीन होगा, तो बुक पलटेगा. अगर आपको लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट अपने यूनिक फॉर्मेट या सेलिब्रिटी गेस्ट से चल रहा है, तो आप गलत हो. यूट्यूब पर हजारों सेलिब्रिटी वीडियोस है जिनको 1 मिलियन व्यूज भी नहीं आते, बट लेटेंट के हर एपिसोड को एवरेज 20 मिलियन व्यूज मिलते हैं. एंड इस शो का ह्यूमरस फॉर्मेट टेक्सास के किल टोनी से इंस्पायर्ड है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पिछले 8 साल से चल रहा था. लेटेंट की कामयाबी का कारण इन सबसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उन्हें समझने से पहले हमें समय के साथ 7 साल पीछे जाना होगा. 2017 में समय सिर्फ 20 साल के थे. उस टाइम वो पुणे में पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ओपनिंग एक्ट्स करते थे. इससे उन्हें यह समझ आया कि अच्छी कॉमेडी कैसे होती है एंड ऑन स्टेज क्राउड को काबू कैसे करते हैं. 2 साल तक उन्होंने अपनी स्क्रिप्टिंग और डिलीवरी को बेहतर बनाया और फिर मुंबई शिफ्ट हो गए. पुणे से मुंबई जाकर उन्होंने अपने आप को एक बेटर ज्योग्राफी में प्लेस कर दिया, जहां कॉमेडी में काफी नई अपॉर्चुनिटीज उभर रही थी, जिसकी वजह से 2019 में उन्हें मौका मिला प्राइम वीडियो के कॉमिक्स्तान सीजन 2 में compete करने का, जहां उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया एंड इवेंचुअली उसको जीत भी लिया. कॉमिक्स्तान जीतने के बाद ब्रांड डील्स आनी शुरू हो गई और उनका स्टैंड अप करियर भी उठने लगा. बट फिर 2022 में आ गया कोविड, जिसने रातों रात पूरे स्टैंड अप मार्केट को ही बंद कर दिया. ये देखकर समय का दिमाग ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज से हटकर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के टुवर्ड्स जाने लगा. रादर देन कि वो कोविड में वेट करे, ही डिसाइडेड कि भाई जो घर पे बैठे बैठे हो सकता है वो करो. इस टाइम समय की एनुअल इनकम 20 लाख से भी कम थी. एडवाइस के लिए जब समय तन्मय भट्ट पर गए, तो तन्मय ने उन्हें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन दिया, जिसके बाद समय अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीम पे चेस खेलना शुरू हो गए. ये स्ट्रीम्स पॉपुलर होने लगी प्राइमरली बिकॉज ऑफ समय's ह्यूमर एंड नॉट चेस. और इसमें हम उनका फर्स्ट क्लिप दिखाना चाहिए, क्योंकि बलराज के साथ ही उन्होंने फर्स्ट स्ट्रीम किया था, जिसके साथ उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट का फर्स्ट एपिसोड शुरू किया था. अभी लिखते लिखते मेरे को एक आइडिया ये आ रहा है कि हर चैप्टर 1 के एंड में वी कैन मे बी एड अ हुक दैट गिव्स देम एन इंसेंटिव टू वॉच चैप्टर 2, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ क्लिफ हैंगर. तो जैसे चैप्टर 2 में बोलता हूँ चूजिंग टू स्टैंड आउट, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बट ये लाइव स्ट्रीम्स तो सिर्फ एक शुरुआत थी. ये चेस
लाइव स्ट्रीम्स तो सिर्फ एक शुरुआत थी। किसी को नहीं पता था कि इन लाइव स्ट्रीम्स पर अगले 2 साल में कितना कुछ होने वाला है। या मैं भी टेंटेटिव रख रहा हूँ, बट हाँ। तो ये था चैप्टर नंबर 1 ऑन द अर्ली स्ट्रगल। यहाँ पे कुछ भी डू यू थिंक वी कैन ऐड एनी फन फैक्ट, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू थिंक वी कैन ऐड? कुछ भी अंश कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, कुछ डिलीट कर सकते हैं? कैन वी गो टू द इंट्रो वाला पार्ट एंड वहां पे मुझे बस एक ये डाउट आया, डाउट एज इन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि सबसे शॉकिंग बात ये है कि जहाँ एक तरफ डार्क कॉमेडी आर्टिस्ट या रोस्ट शोज एक भी अच्छा स्पॉन्सर को नहीं ला पा रहे वो वाला। सो आई एम जस्ट आस्किंग कि इज दिस फैक्ट more can we alter this fact with some other fact, because it is not, I feel for Hook it is not too attractive. See, the thing is ki for you are a YouTuber, you know all these insights and ये सब चीजें, ये इनके लिए बहुत important है कि इनको sponsors नहीं मिल रहे and they are struggling. So counter to this, for देन वी शुड प्रॉब्ली रीऑर्डर। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ऊपर आ जाना चाहिए हाँ, और फिर something like that, आ जाना चाहिए, something like that, yeah. है ना? Because this, मतलब the idea behind it was कि हुक में ही हम we are giving too much information maybe. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एग्री, आई एग्री। एंड मिडिल क्लास वाला पॉइंट इज मोर रिलेटेबल। Exactly. अ नॉन यूट्यूबर विल आल्सो एग्जैक्टली relate to द it. हमें अगर एंड तक के मतलब उसको रिटेन करना है, सो वी हैव टू कीप दैट, होल्ड दैट स्टोरी फॉर लेटर पार्ट, आई थिंक। हाँ करेक्ट। और यहाँ पर ना हम क्लिप्स डालनी चाहिए हमारे को, वो 20 लाख अंशुमन वाली। हाँ एक्चुअली क्लिप्स तो बहुत ही सारी है, प्रखर और अंशुमन के पॉडकास्ट में इज गिवन अ लॉट। वो मैं ओम को बताऊंगा कि कहाँ से उन क्लिप्स को ढूंढना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनसाइट देयर। ऑल्सो हुक में ही वो जो मैंने स्लैक पे जो पॉइंट डाला था कि वी कैन इंट्रोड्यूस दैट एज वेल, कि जहाँ पे काफी लोग, हाउ द टाइटल इज डिकोडिंग समय रैना ब्रेन, राइट? सो वहां पे समय रैना इज इम्पोर्टेंट, नो? सो मे बी वी कैन ऑल्सो एड दैट पॉइंट कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे और भी शोज है, लाइक लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, बट द एक्स फैक्टर इज समय रैना, तो उसने काफी मेहनत की है इसके पीछे, है ना? तो somewhere around that lines can be more attractive, that's what I feel like as a general audience. इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे और भी शोज हैं, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इनफैक्ट उनकी कॉपीज भी बन गई है, बट कोई भी समय के आसपास भी नहीं आ पा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। Correct, correct. आसपास भी नहीं आ पा रहा है। Maybe we can refine this and something like that, है ना? We can also write something on these lines कि जहाँ बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस रेलेवेंट और अपनी इनकम बढ़ाने में स्ट्रगल करते हैं, वहीं समय रैना जैसा स्टैंड अप कॉमेडियन एक इसरो के साइंटिस्ट या गूगल के इंजीनियर से भी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। नहीं, Yeah, ये देख सकते हैं कि समय रायना का रेंज एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो चेस प्लेयर से लेके विश्वनाथन आनंद से लेके आमिर खान तक और रजत दलाल और दीपक कलाल सबके साथ है। I've been following him since उसने जब पहला स्ट्रीम किया तब से। हाँ मतलब ये yeah. हुक में नहीं आएगा, Hmm. बट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसका Yeah. रेंज बहुत वाइड है। ठीक है, हुक हो गया, आगे बढ़े। एनीथिंग दैट वी कैन डू टू मेक चैप्टर 1 मोर एंगेजिंग? कोविड वाला स्टोरी में खुद को बंद कर लिया था, एंड लाइक नॉट बंद कर लिया था, बट मान के चलो ही वाज स्ट्रीमिंग लाइक एनीथिंग दैट टाइम. या Like he was like almost 14 hours in a day he was online. व्हाट आर यू सेइंग? Yeah. 14 Almost Yeah, 13-14 hours a day he was like full day he online. was streaming. 14 hours used to stream? Yeah. ये तो मुझे भी नहीं पता था। I was वो there, I was सुबह watching. स्ट्रीम करते थे, रात को दोपहर में सोते थे, फिर वापस स्ट्रीम शुरू हो जाता था। तुम जा रहा है, खाना खा रहा है उस टाइम पे, फिर वो उधर ही खाता था स्ट्रीम सब पे। कुछ स्क्रीन के सामने, सब कुछ स्क्रीन के सामने. ये तो He बहुत worked really hard. ये तो बहुत ही बड़ी बात है, ये तो मुझे नहीं पता था। एंड ही मेड अ ब्रांड आउट ऑफ उसका लेजीनेस भी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ ऐसे, मैं कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, एंड दैट इज हिज ब्रांड नाउ। So basically he tried multiple things before becoming this what he has. That is the story.
सो ही हैज ट्राइड 14 घंटे स्क्रीन के सामने रह के उसने सब कुछ ट्राई आउट कर लिया कि ये वर्क कर रहा है ये नहीं कर रहा है, तो ये कब स्टडी करता था क्या करता था वी डोंट नो दैट। लाइक 14 आवर्स के बीच में ही वो ये सब चीजें कर रहा है। वो कोविड taught him a lot, so he made that opportunity for himself by studying all these things Yeah. online, like relentlessly. ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर 2 में। सो दिस इज वेयर वी से चूजिंग टू स्टैंड आउट एंड यू कैन सजेस्ट बेटर टाइटल्स आल्सो, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्लो में लिखा था। देखते ही देखते समय की कॉमिक टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ सेलिब्रिटी गेस्ट बेहतर होने लगी। उनके लाइव स्ट्रीम्स पर आमिर खान, अरिजीत सिंह, विश्वनाथन आनंद, रफ्तार, पता नहीं कितने लोग आने लगे। साथ ही साथ इतने लाइव स्ट्रीम्स करके उनको समझ आने लगा कि इंडियन ऑडियंसेस को क्या देखने में मजा आता है। स्ट्रीम्स की वजह से 2022 में उनके ऑफलाइन शोज की भी टिकट्स बिकने लगी, बट ऑफलाइन शोज में इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती। और अंशुमन के पॉडकास्ट में एक क्लिप है जहाँ पे ही इज एक्सप्लेनिंग द ब्रेकडाउन कि आर्टिस्ट को सिर्फ 14,000 ही मिलता है। समय को पता था कि उनको कुछ तो हटके करना होगा। 4 साल लाइव स्ट्रीम, स्टैंड अप कॉमेडी एंड ब्रांड कोलैब्स करने के बाद उन्होंने यूट्यूब के लिए अपनी टीम के साथ बैठकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जिसका यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट गारंटीड था। बट इस कामयाब डिजाइन को ब्रेक डाउन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यूट्यूब काम कैसे करता है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। Right. Yeah. Names we can add a lot of people like Magnus Carlsen is world champion. उसका भी नाम डाल सकते हैं। मैग्नस, He is world number one since many years. वर्ल्ड नंबर 1 Hmm. चेस प्लेयर। ठीक है, ओके। आई और थिंक चैप्टर 2 में इतना ही होना चाहिए एंड आई चैप्टर 3 क्रैकिंग द एल्गोरिदम भी इसमें ही मर्ज हो सकता है। नहीं, आई थिंक बिकॉज इट्स हिज डिसीजन टू स्टैंड आउट। आई जस्ट वांट टू कॉल दैट आउट कि एट वन पॉइंट ही डिसाइड कि भाई लाइव स्ट्रीम ऐसे सभी कर रहे हैं, आई वांट टू स्टैंड आउट। लाइक दैट वुड बी अ फेज इन हिज लाइफ आल्सो। ओके लाइक मेंटली आल्सो ही वुड बी लाइक नाउ आई वांट टू स्टैंड आउट। ठीक है, चैप्टर 3। ठीक है, क्रैकिंग द एल्गोरिदम। यूट्यूब अपना पैसा आपको एड्स दिखाकर कमाता है। आप यूट्यूब पर जितना समय स्पेंड करोगे उतने ही एड्स देखोगे, जिसकी वजह से यूट्यूब और पैसे कमाएगा। यूट्यूब चेक करता है कि हर व्यूअर एक वीडियो को कितनी देर देख रहा है, जिसको बोलते हैं वॉच टाइम। वॉच टाइम तभी बढ़ेगा जब व्यूअर वीडियो एंड तक देखेगा। जितना वॉच टाइम बढ़ेगा उतना यूट्यूब आपको पसंद करेगा। और वॉच टाइम सिर्फ फैंसी एडिटिंग या प्रोडक्शन से नहीं आता। तो अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए लेटेंट की टीम ने 5 टेक्निक्स यूज करी। नंबर 1, क्रिएटिंग लाइट हार्टेड कंटेंट। आजकल सब अपने लाइफ में इतने परेशान हैं कि सबको शाम को काम से वापस आकर लाइट हार्टेड कंटेंट या कॉमेडी देखना पसंद आ रहा है। लेटेंट इज द परफेक्ट फिट फॉर दिस, क्योंकि आप आराम से पीछे बैठकर दिमाग बंद करके इसको देख सकते हो। पैनल पर एटलीस्ट 4 से 5 लोग हमेशा होते हैं जो शुरू से ही मजाक करने के मूड में होते हैं। तो एक घर पे बैठा व्यूअर ऐसा फील करता है एज इफ वो अपने दोस्तों के साथ कोई इन पर्सन शो देखने आया हो। इस लाइट हार्टेड फॉर्मेट की वजह से व्यूअर वीडियो को रिलैक्स होकर लंबे टाइम तक देख पाते हैं। नंबर 2, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। हर परफॉर्मर को सिर्फ 90 सेकेंड्स मिलते हैं एंड टैलेंट दिखाने से पहले उसे अपने आप को 10 में से स्कोर करना होता है। टैलेंट दिखाने के बाद फिर सारे जजेस उसको एक स्कोर देते हैं, और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकला जो पार्टिसिपेंट ने अपने आप को दिया था परफॉर्मेंस से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाता है। इंडियाज गॉट टैलेंट या डांस इंडिया डांस जैसे शोज में परफॉर्मेंस देखकर एज ऑडियंस आप पहले ही गेस कर लेते हो कि जजेस इसको कितना स्कोर देंगे। बट यहां पर एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम है। कोई नहीं जानता कि परफॉर्मर अपनी स्किल्स को लेकर कितना सेल्फ अवेयर है। तो एज अ व्यूअर पहले आप सिर्फ 90 सेकेंड्स परफॉर्मेंस देखते हो और फिर वेट करते हो ये देखने के लिए कि जजेस का स्कोर परफॉर्मर के स्कोर से मैच करता है कि नहीं। ऑन टॉप ऑफ दिस, हर परफॉर्मेंस के बाद समय या बाकी जजेस कुछ ना कुछ फनी करते हैं जो व्यूअर को बांध के रखता है। इसमें एक और पॉइंट है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट who will win, because in a lot of cases the best man may not win on latent. Right. Like in India's Got Talent, the best guy is obvious या that he's the winner. एटलीस्ट वो फर्स्ट 3 में आएगा, वो तो भी एटलीस्ट रहता है। हाँ, बट इधर नहीं For बता, sure. बेस्ट मैन मे नॉट विन, तो वो एक और इंसेंटिव है टू स्टे लॉन्गर। ठीक है। Right. नंबर 3, रेलेवेंट जजेस। इन एवरी पैनल समय एक कॉमेडियन एंड एक सेलिब्रिटी को जरूर रखते हैं। कॉमेडियन से ह्यूमर बढ़ता है एंड सेलिब्रिटी से वीडियो के इंप्रेशंस। अगर आप पैनल के 4 जजेस में से एक के भी फैन हो
तो आप अंत तक बैठोगे टू सी कि आपका फेवरेट क्रिएटर कैसे रिएक्ट करता है। ऑन टॉप ऑफ दिस, यूट्यूब के कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिदम की वजह से आप जब भी एक सेलिब्रिटी को अपने चैनल पे इनवाइट करते हो तो आपका कंटेंट उनके पूरी ऑडियंस को दिखता है, जिससे चैनल ट्रैफिक बढ़ जाता है। नंबर 4, रीपैकेजिंग कंट्रोवर्शियल कंटेंट फॉर मेंबर्स ओनली। समय ने अपने पूरे शो के सारे एक्सप्लिसिट कंटेंट को मेंबर्स ओनली कंटेंट में ऐड कर दिया है। ऐसा बॉर्डरलाइन ऑफेंसिव कंटेंट या डार्क ह्यूमर जिसको पब्लिकली रिलीज करने में बहुत रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से AIB एंड आशीष सोलंकी जैसे क्रिएटर्स को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ये कुछ स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे हुआ है, बट हाँ, द पॉइंट इज कि बाकी को नुकसान हो चुका है। ही एक्टेड वेरी स्मार्ट। पर समय ने उनकी गलती रिपीट नहीं करी। उन्होंने एक नया चैनल लॉन्च करा फॉर लेटेंट क्लिप्स, जहां पे वो सिलेक्टेड मेंबर्स ओनली कंटेंट रिलीज करते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ फनल फॉर हिज पेड कंटेंट। और मुझे आज पुष्कर ने बोला कि कुछ एपिसोड्स तो सिर्फ मेंबर्स ओनली पे होता है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि डे 1 से जो पोजिशनिंग है ना ऑफ समय, वो ये है कि मैं तो डार्क ह्यूमर ही बोलूंगा और इसके ही तो मुझे पैसे दोगे। लाइक ही इज जस्ट सी व्हेन अ वेरी काइंड गाय, लेट्स जस्ट से सहवाग, Saurav Ganguly or Rahul Dravid. Like if Rahul Dravid comes into that cred ad became very very viral because you did not expect Rahul Dravid to behave that way. Yeah, but in this case you actually first of all expect Samay to behave that way and you want to see that behavior. राइट। एंड आई थिंक एक और रीजन ये है कि समय की जितने भी ये रील्स होती है, ये इसलिए वायरल होती है बिकॉज ही सेज थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट से। लाइक जो जोमेटो का पूरा वायरल कैंपेन हुआ है, वो इसी बेसिस पे है कि वो स्विगी का शर्ट पहन के जोमेटो हाँ राइट। राइट, या अनअकैडमी वाला है, Academy of Physics वाला। हाँ अनअकैडमी नेगेटिव मार्केटिंग वाला। ठीक है। और इसका एक और बहुत फन फैक्ट ये है कि स्विगी को पता चल गया होगा कि समय कौन है और फिजिक्स वालों को भी पता चल गया होगा ये कौन है, राइट? सो यू गेट आई बॉल्स फ्रॉम द कंपेरेटर ऑल्सो। तो आपको जिसने पे करा वो भी आपके बारे में बात कर रहा है, उसका कंपेरेटर भी आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पूरे स्विगी के ऑफिस में भी वायरल हो गया और जोमेटो के ऑफिस वालों ने तो पैसे ही दिए हैं। तो हाँ, I think this is good. Like to coming back to the point, I really love the algorithm वाला breakdown भी and repackaging वाला जो section था उसके ऊपर वाला भी very tight script I feel, जितना भी है सब चीजें। हाँ, अब अभी मैंने what do you feel ओम बाकी सब लोग? Yeah, I really like this. ये वाला जो चीज है ना कि ये एक पूरा comedian and I love it. I Like think we can add one more point, which I feel is the actual thing कि why people accept dark humor from Samay Rana only and बाकियों को बहुत hate मिल जाता है. And I feel the core reason is कि like from the start Samay Rana has not been the biggest, like he won't give you the best laugh on your belly, but he would उसका जो background रहा है ना, he has a lot of trauma himself. मतलब वो जम्मू कश्मीर वाली चीज, and he has been bullied throughout his childhood. सो वो उसी को लेके अपना ही मजाक उड़ाता था. सो पीपल आर ऑलरेडी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम एंड आई फील दैट्स व्हाई अगर कोई और डार्क कॉमेडी करता है सो पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि हु आर यू टू से दिस, बट व्हेन इट कम्स टू समय रैना पीपल नो ही हैज बीन थ्रू अ लॉट, सो पीपल एक्सेप्ट डार्क कॉमेडी कमिंग फ्रॉम हिम. सो आई फील दिस इज अ गुड रीजन. चाइल्डहुड वाले में ये जा सकता है, हाँ, somewhere we can maybe integrate or I don't know. Streams में कश्मीरी पंडिट्स ने अपना बहुत किया है। इवन अंकुर वारिको के साथ जिसका हाँ, video हाँ, था, हाँ। उसने अपना ही मजाक उड़ाया था and बहुत अनएक्सपेक्टेड था अंकुर वारिको के लिए भी। या बात होती है ना कि अपनी So before tapping into others' insecurity, he taps into himself. एक और इसमें ना साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि एक Amazon प्राइम पे एक शो आया था पाताल लोक, हाँ, जो विलन्स के ऊपर था। बाय द वे जमुना पार के ऊपर था, जमुना पार था पाताल लोक हो, ठीक है। तो पाताल लोक में ऐसे दिखाते हैं कि 4-5 क्रिमिनल है और जैसे जैसे शो इवॉल्व होता है तो क्रिमिनल का बैक स्टोरी दिखाते हैं कि वो मर्डर कैसे बना, वो कैसे हुआ, ठीक है। नाउ द फन पार्ट हियर इज कि जब आपको किसी क्रिमिनल का बैक स्टोरी पता चलता है तो आपको रियलाइज हो जाता है कि criminals are not born, they are made, and then suddenly everything that they do, whether it's bad or murder या crime, suddenly you justify it. हाँ, the Mufasa वाला फिल्म, Right. वाला इतना ज्यादा इमोशनल डाल दिया है। इतना इमोशनल डाल दिया। Game of Thrones में भी है ये सेम चीज। हाँ, तो अब जब तुम मुफासा देखते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई स्कार तो ठीक ही था क्योंकि उसका ही राज्य था वो, ये तो तैर के आ गया मुफासा पानी में से निकल के। तुमने देखी मुफासा? नहीं, मैंने तो नहीं देखी ये। तुम आई थिंक ये इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नया वीडियो बन सकता है। हाँ, एक्चुअली विलन्स के ऊपर, व्हाई पीपल लव विलन्स,
ये दिस इज मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत खुद भी सोचा है. दिस कैन बी अ प्रॉपर वीडियो. होता क्या है, परसेप्शन और नैरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, तुम एक बहुत भले आदमी को उठा के उसको बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही इनसिक्योर क्रिएट कर सकते. तुमने वैसे लायन किंग देखी है सबने, बट तुमने मुफासा नहीं देखी. नहीं. तो मुफासा एक तो प्लीज देख के आओ भाई. मैं तो यही V3S देख के आया था. तुम किसी ने इस कॉल पे देखी है मुफासा, ओम या नहीं 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 भाई? I'm तुम लोग little- मुफासा क्यों नहीं देख के आए हो अभी तक? मैं देखूंगा देखूंगा, इतना अभी हाइप हो गया इसके बारे में, देखनी पड़ेगी अभी. बट यस, द टॉपिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज पोजिशनिंग एंड नैरेटिव. Yeah, and why people empathize with villains like Animal? Maybe people loved Animal. तो चलो अपने नेक्स्ट नंबर मूविंग. हाँ हाँ. नंबर 4 में लेटेंट के YouTube मेंबरशिप में 60, 600 एंड 2000 रुपीज तक के प्लान्स हैं. एंड अगर हम उनके 5 लाख मेंबर्स को 60 से मल्टीप्लाई करके YouTube का 30% कमीशन डिडक्ट भी करते हैं, तब भी समय इज अर्निंग ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ पर मंथ. ठीक है, दिस इज इनसेन एक्चुअली. ये मैं वर्स्ट केस मान के चलूँ कि सबने 60 रुपए वाला लिया है. Number 5, distinct IP and brand identity. The self-aware point system, एक distinct logo जो एपिसोड 1 के बाद बना था. बाय द वे एपिसोड 1 में कुछ और लोगो है, एपिसोड 2 में आइडेंटिटी बनी है. द लोगो ट्रांजिशंस, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इंडियाज गॉट लेटेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, जिससे समय खुद की एक वैल्यूएबल आईपी बना पा रहे हैं. आईपी स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ आप ओन करते हो. एक ऐसा यूनिक ऑफरिंग जो दूसरों के लिए कॉपी करना टफ हो. कौन बनेगा करोड़पति या इंडियाज गॉट टैलेंट, एक ऐसी, दोनों ऐसी आईपी है, एक नहीं दोनों. या ठीक है. सिमिलरली यूट्यूब पर अब इंडियाज गॉट लेटेंट भी एक आईपी बन गया है. कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2 साल में यूएस या यूके के कॉमेडियंस इसकी आईपी समय से खरीद के यूरोप्स गॉट लेटेंट या अमेरिकाज गॉट लेटेंट भी लॉन्च कर दे. राइजर ब्लैकआउट. अब चैप्टर 4, लेसन्स फॉर लाइफ. मैं पर्सनली समय से, ये हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में फैक्ट है, मुझे अपूर्वा ने बताया. मैं पर्सनली समय से कभी मिला नहीं हूं, बट मेरे काफी दोस्त उनसे बात करी है. एंड सबका एक ही कॉमन रिव्यू था कि समय कैमरा पर जितने सैवेज और ऑफेंसिव है, ऑफ कैमरा वो उतने ही हम्बल है. मैं जानता हूं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती. आई नो कि समय रैना की टीम, उनके 5 साल का हसल, टाइमिंग, कनेक्शंस, हर चीज का इधर बहुत बड़ा रोल है. बट फिर भी हम उनकी कहानी से 5 कीमती लेसन सीख सकते हैं. लेसन नंबर 1, लर्न हाउ टू पिवट एंड इवॉल्व. समय ने पुणे से मुंबई शिफ्ट होकर अपने आप को बेटर ज्योग्राफी में रखा एंड 2 साल तक अपने स्टैंड अप स्किल्स पर काम किया. पर जब कोविड ने ऑफलाइन शोज बंद कर दिए तो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया. कंप्लेन करने की जगह उन्होंने घर पर बैठकर बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट करे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज किया. पहले चेस स्ट्रीमिंग करी और जब 2022 में वो भी स्लो होने लगा तो लेटेंट के ऊपर काम करने लग गए. इसलिए एज अ फाउंडर आपके लिए टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है. लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड द प्लेटफॉर्म यू आर सेलिंग ऑन. समय ने पहले 2 साल लाइव स्ट्रीम्स करके अपने टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी एंड यूट्यूब एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझकर एक नया आईपी क्रिएट किया, जिससे वो एक क्राउडेड मार्केट में स्टैंड आउट कर पाए. इसलिए कुछ भी लॉन्च करने से पहले अपने टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझे. साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को स्टडी करें और उसके हिसाब से ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाए. लेसन नंबर 3, मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स. कंट्रोवर्शियल या एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने की जगह समय ने इसे मेंबर्स ओनली कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया. इस स्ट्रैटेजी से ना सिर्फ उनका रिस्क कम हुआ, बल्कि एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट हुई. वैसलीन पूरी दुनिया में पेट्रोलियम जेली बेचकर करोड़ों की सेल्स करता है, बट असल में ये जेली तेल बनाने के प्रोसेस का एक साइड प्रोडक्ट है जो पहले वेस्ट माना जाता था. वैसलीन ने इसी वेस्ट को बेचकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया. इसमें मुझे ये डाउट आ रहा था कि वैसलीन का एग्जांपल पहले बताऊं या बाद में बताऊं. आई थिंक पहले बताना ज्यादा बेटर रहेगा. एंड ऑल्सो मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स की जगह लेवरेज योर समथिंग ऐसा, ये भी हो सकता है. लेवरेज नहीं है इसमें, मैक्सिमाइज ही हो रहा है. लेवरेज तो इसमें इतना कुछ है नहीं खास. लेसन नंबर 4, बी इंस्पायर्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड. ये लेसन मैंने निखिल कामत और बादशाह के WTF पॉडकास्ट से सीखा था. लेटेंट से पहले किल टोनी ऑलरेडी 8 साल से सक्सेसफुल था. समय ने किल टोनी से इंस्पिरेशन तो लिया, बट उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया. उन्होंने एक वैल्यूएबल आईपी क्रिएट करा जिससे इंप्रेशंस एंड वॉच टाइम बढ़ते रहे. लेसन नंबर 5, कीप शोइंग अप. 5 साल तक समय ने कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स इंप्रूव करी है.
पहले एज एन ओपनिंग एक्ट परफॉर्मर, फिर कॉमिकस्तान विनर, चेस लाइव स्ट्रीम्स और अब फाइनली इंडियाज गॉट लेटेंट. इट्स इम्पॉसिबल टू बीट समवन हु कीप्स शोइंग अप. मतलब इंसान को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो हर रोज कोशिश करने के लिए राजी हो. मैं खुद एक साल से कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये चैनल नया है तो इस पर अभी इतने व्यूज नहीं आ रहे, बट समय की इस कहानी से मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिली है. कमेंट्स में बताना कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलना, और अगर हो सके तो इस वीडियो का एक क्लिप इंस्टाग्राम स्टोरी पर जरूर डालना, टैगिंग मी एंड समय रायना. मेरा नाम है अंश मेहरा एंड आप सीख रहे हैं फ्रॉम द प्लेबुक. खत्म. आई थिंक वो 14 आवर्स वगैरह वाला अगर हो सकता है यहाँ पे भी डाल सकते हो, जहाँ पे शोइंग अप में जो आप कह रहे हो कि शोइंग अप में जा सकता है वो. बट पुष्कर कह रहा है 14 आवर्स का दिख नहीं रहा कहीं पर. आई मीन मैं भी वही चेक कर रहा था, बट ये एक भी थोड़ा है देखना 4 एक पॉडकास्ट में उसने भी बोला था, एंड काफी लोगों ने, मतलब नॉट एवरी डे 14 आवर्स, बट लाइक ही वाज डूइंग इट मैडली, लाइक वेरी वेरी कंसिस्टेंटली. तो वी कैन बेसिकली एग्जैजरेट दैट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Co-winner. एग्जैजरेट कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत. दो विनर थे उस शो में. कॉमिक्स्तान में वो दो विनर थे, वो आकाश गुप्ता और समय रैना आई दोनों. थिंक समझ गया. 14 की जगह बोल सकते हो कुछ स्पेसिफिक आवर्स, बिकॉज एक स्ट्रीम है इसका, नॉट स्लीपिंग अंटिल आई रीच 1700 व्हिच इज अराउंड 8 आवर्स. हाँ, सो 7 से 8 घंटे कर देते हैं. मतलब एवरेज 6 घंटा दिन का लगाया, Average 6 घंटा कर ऐसा देते हैं. कर सकते हैं. इसका एक बी रोल भी मिल जाएगा जहाँ पे समय किसी के साथ पॉडकास्ट पे है, एंड ही इज टेलिंग अबाउट दैट दोज कोविड टाइम्स. एवरेज वो करता था. एवरेज ड्यूरेशन इज 1 आवर ओनली. ये इसकी 5 नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि 14 आवर्स का एक था. व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि वो लेट नाइट चेस खेलता था, फिर वो कुछ घंटे बाद उठ के आफ्टरनून चेस खेलता था, फिर वो इवनिंग चेस खेलता था, इसका तो फिर ना वो फुल डे. पॉडकास्ट क्लिप मिल जाए उसका ये बोलते हुए. हाँ, ये मिल जाएगा. हाँ ये आई थिंक इसका मिल जाए, क्योंकि मैंने कोई तो भी एक पॉडकास्ट ही देख रहा था मैं. हिज फ्रेंड हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर समथिंग. अंशुमन. हाँ, अंशुमन के साथ ही है. तो उसी पॉडकास्ट में उसने कोविड के बारे में जब बोला था, तो वो टाइम पे ही उसने बोला था कि यार मैं उठ रहा था, मैं बस कर रहा था स्ट्रीम करो ऐसा. ओ, ये क्या अंडरस्टैंडिंग कॉमेडी फीड समय रहा है ना. हाँ हाँ अंशु, अभी मैंने भेजा था. आई वाज सेइंग कि we can add one more lesson which says कि he is not afraid to teach what he knows. So ये विदित गुजराती के साथ है. विदित गुजराती और सागर शाह are two international master and grand master chess के. So they taught him chess. तो वो learning chess करके एवरी मॉर्निंग वो स्ट्रीम करते थे, जिसमें बिस्वा कल्याण रथ और समय रैना और दो कॉमेडियंस आते थे, वैभव सेठिया, और हाँ ये 3-4 कॉमेडियंस आते थे. तो वो उन्होंने इसको एक हफ्ता 1 महीना चेस सिखाया. तो समय रैना ने बोला कि अब मैं सीखता ही रह गया, अब मैं आपको जो मुझे आता है ना, मैं कॉमेडी के बारे में सब सिखा दूंगा. ये एंड में भी बता सकते हैं कि अगर आपको समय रहने की कॉमेडी सीखनी है तो उसका भी एक कोर्स फ्री में डला हुआ है. इसने गुकेश को भी हराया हुआ है, हाँ, डाला था उसने. ठीक है, इंटरेस्टिंग. The next video is me reviewing the first A-roll edit and ideating on the basic storyboard for our documentary. Now for this specific video, you have to observe again a few specific set of things. How I try to plan and set timelines for every little aspect of the video. How I try to show exact references so I can make the opposite person or my editors understand what I'm trying to visualize in my brain. Let's watch. Hi folks, so right now I have completed the A-roll edit of our latest Hindi YouTube video, which is going to go on our Playbook YouTube channel. The title of the video is probably going to be like The Rise of Samir Raina and India's Got Latent. I have recorded the video. I have done the A-roll editing also. I've added the gaps also. So अब editing should be very very easy for all the rest team members. We have Thursday, Friday and Saturday. We have 3 days to edit this. On Monday, I want to release it. Like if not Monday, then at least Tuesday, so for sure. So what we need to do is, I'll tell you who is going to work on this. Om is the content developer. Danish will do all the 3D scenes. Romani can help in storyboarding and finding all the videos. And then Pushkar will also help in the editing. We do not have to spend too much time storyboarding. We just have to put the B-rolls as like normal footages. YouTube से video निकाला, clip करा, डाला, aberration CRT डाला, that is all. And just book के chapter के pages. Nothing else is required at all. It is a pure narration based video. We only have to do like a face का cut. Like वो जो jump cut type होता है.
So Pushkar, what you do is you first have to wait for Susmit. सबसे पहले the task is for Susmit. Till Susmit is completing the audio, Pushkar and Romani, you both need to split this video. ठीक है? So it's a 15-minute long video. First 7.5 minutes Pushkar, second half Romani. Whatever I'm saying in the entire script, I will share you the Google document that has the script for every important word. Find the exact YouTube video that you'd be showing there. I have already made a lot of notes. In the bottom of the document, I've shared some links also. Just have those clips ready, download them and keep them ready. Trim them, put them in the Premiere Pro itself so that when Susmit audio comes in, you can just put things together. So this task should not take more than a day or a day and a half because it's very simple. Most of the videos are easily available online. Danish, you just have to finish all the pages wale scenes and latent ka scene, flying book wala. I'll explain you what I'm thinking. And then, sort of Susmit can finish the audio and only then we'll start the editing. Okay. Now, the way I am visualizing this video is that the opening scene should be like a very very good clickbaity line. So I hope all the people who were doing the research, कुछ आपको कुछ ऐसा clickbaity type कुछ ऐसा statement दिखे जहाँ पे कोई बोल रहा है कि जो समीर रैना ने करा है वो तो कमाल ही कर दिया है, कुछ बहुत ही amazing कर दिया. Like I want the first frame of either तन्मय भट्ट or someone very very successful saying कि भाई जो समीर ने किया वो कोई नहीं कर सकता. और ऐसे थोड़ा सा ना serious type music चाहिए so उसमें, like it has to be very curious, it has to be very serious. And वो क्लिप आ रहा है और एकदम वो जो पुराना विंटेज कैमरा फ्लैश होता है टाइप, एंड देन यू फ्लैश जैसे एकदम वाइट, और जब वो फ्लैश खत्म हुआ सो वी शो दी एम्प्टी लेटेंट का रूम. ठीक है, एम्प्टी के लेटेंट रूम में आगे ऐसे कैमरा धीरे धीरे पैन कर रहा है. एंड देन देयर इज दिस ट्रांजिशन जो हमने अपने एक्चुअल उसमें भी यूज करा है इंट्रो में, विंटेज टाइप ट्रांजिशन. उसमें बड़ा अच्छा सा आवाज भी आता है, बड़ा सॉफ्ट सा आवाज आता है. तो वो एकदम फिर से आया, एक सेकंड बाद फिर से आया, और फिर से कोई बहुत ही बढ़िया एपिक सीन हमारे को ढूंढना है जहाँ पे वो कन्फेटी फेंक रहे हैं और समीर रैना ऐसे कुछ बहुत ही अमेजिंग कर रहा है. फिर कैमरा काफी ज्यादा जूम इन हो जाएगा दानिश, एंड देन वी मूव टू द टेबल ओनली. अब कैमरा पैन करके टेबल तक पहुंच चुका है, बट पैनिंग का स्लो उतना ही है, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव कट द प्रोग्रेशन. एंड देन फिर से हम कुछ सीन दिखाएंगे कि समीर रैना से वो पूछ रहे हैं कि आपने अंशुमन कहता है कि आपने कितनी की खरीदी, तो कहता है एक ब्रांड डील में खरीद ली, एक ही रील में खरीद ली, 17 लाख की कुछ गाड़ी, तो वो हमारे को डालना चाहिए. फिर कैमरा टेबल के ऊपर आता है, टेबल पे समय की सारी पुरानी फोटोज बिखरी हुई है. टू गेट दोज फोटोज दानिश, डाउनलोड लाइफ ऑफ समीर रैना वाला स्टोरी वाला जो चेस बेस इंडिया के यूट्यूब है ना, उसमें सारी फोटोज डली हुई है, पहले से सारी फोटोज डली हुई है. बीच बीच में जब मैं बोलूंगा स्लाइड शो डालो उस फोटो का, वो फोटो वहीं पे मिलेगी, तो वो सारी फोटोज है. तो टेबल पे फोटोज बिखरी हुई है, हैबिटेट का कप रखा हुआ है, नोट पैड रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, और ये बीच में किताब रखी हुई है. एंड किताब में हमारे को लिखना है डी कोडिंग समीर रैना एंड द राइज ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट. एंड इसका कवर रोमानी के डिजाइन, रोमानी किटल का एक्सेस ले लो, किटल पे ऐसे बहुत सारे कवर्स है, ज़्यादा सोचने का नीड ही नहीं है. और tools@anshmara.com से किटल पे लॉग इन करना, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. मैं लूम का मैंने कल एक ट्यूटोरियल भी बनाया था दैट आई हैव शेयर टू दीक्षिता. यू कैन वॉच द सेम ट्यूटोरियल, इट इज़ जस्ट लाइक फिग्मा विद रेडीमेड टेम्पलेट्स. वो बुक कवर दानिश को दे देना. फिर दानिश, व्हाट वी नीड टू डू इज आई विल प्ले द वीडियो. ये है समीर रैना. तो पहले आएगा एक क्लिप, कोई कुछ बोल रहा है, एकदम कमरे में आया, ठीक है. फिर एकदम से फिर से एक कोई क्लिप आया समीर रैना का, और फिर बैकग्राउंड म्यूट हो गया, और फिर मेरा आवाज आया, ये है समीर रैना. और फिर एकदम से फिर से आया क्लिप, वो ट्रांजिशन आके, वो जो स्लाइड शो वाला ट्रांजिशन है कि समीर रैना ने जो करा है, ब्रेक हो गया है, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, पागल हो गए सब लोग. एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, अब इसमें फॉर एवरी वर्ड यू हैव टू चेंज द सीन. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, इसमें उनका एक पिक्चर पुराना, अब यहाँ पे फिर से कट, जो जम्मू से निकलकर एक और पिक्चर, प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था. इसमें वो जो लाइफ ऑफ समीर रैना है, उसमें उनका क्रेजी बी का एक क्लिप है जिसमें वो ऐसे ऐसे बहुत पुराना सा है, कुछ इंटर्न टाइप कुछ पोएट्री कर रहा है, वो डालो. उसने सिर्फ 5 साल में अनअकैडमी का स्टेज पर फोटो डालो. इतना बड़ा बिजनेस में लेटेंट, ठीक है. और कोई न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिल जाए तो और भी बढ़िया. कैसे बना लिया, राइज हो रहा है.
जितनी दौलत और नाम बाकी अच्छा नहीं, इसमें तो न्यूज़ क्लिप आएगा। कैसे बना लिया? इसमें अगर कोई क्लिप आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को सालों बाद हाँ, अब जैसे जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को सालों बाद ओटीटीज या बॉलीवुड से मिलती है, 6 क्लिप्स इसी में चेंज हो गई। तो इसमें हम विपिल गोयल, मोस्टली सेन, बस्सी, उनके क्लिप्स दिखाओ, मतलब इट शुड कट 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 एकदम। वही दौलत समय ने इतनी जल्दी खुद से कैसे बना ली? देख रहे हो मैं कैसे कट कर रहा हूं? एक इंसान जिसको स्कूल तक जाने से डर लगता था, अब इसके अंदर एक क्लिप है, उसमें बोलता है कि मुझे स्कूल में सब बहुत बुरी करते थे, लाइफ लाइफ स्टोरी वाले में ही, कि मेरे को स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। अंशुमन के भी पॉडकास्ट उसने बहुत बारी बोला हुआ है, प्रखर के में भी बहुत बारी बोला हुआ है। वो सारे क्लिप्स का मोन्टाज यहाँ आ सकता है। जिसको बचपन से सबने बुली किया, इसमें बुली वाला डालना, वो आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से कैसे जुड़ गया? ठीक है, तो इसमें हम आमिर खान का, अरिजीत सिंह का, विश्वनाथन आनंद, महिंद्रा, इन सब के कंपाइलेशंस डाल सकते हैं। वो हाय हेलो कर रहे हैं कुछ भी, वेलकम टू द प्लेबुक, और एकदम हाँ, फिर राइजर 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 और फिर एकदम ब्लैकआउट। ठीक है, वेलकम टू द प्लेबुक, जहां हम दुनिया के सबसे हमारा सुस्मित का टाइटल सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखते हैं। YouTube पर सब स्किल्स तो सिखाते हैं, बट कोई हमें अच्छे से सोचना नहीं सिखाता। ये कहानी आपको जिंदगी में समझदारी से, इसमें सुस्मित को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। और इसमें जब मैं बोलता हूँ ना जिंदगी में आपको समझदारी से सोचना सिखाएगी, अपनी एक आइडेंटिटी बना जाएगी, तो प्लीज बी रोल मत यूज करना, प्लीज बॉलीवुड के मूवी सीन्स यूज करना। आगे बढ़ना सिखाएगी, अपने खुद की एक पहचान बनाना सिखाएगी, और सबसे जरूरी एक मजबूत बिजनेस शुरू करना सिखाएगी। तो चलिए आज का पहला अध्याय शुरू करते हैं। अब जो इसमें टाइटल ट्रैक आएगा ना, इसका हमारे को रेंडरिंग अलग से करना पड़ेगा पुष्कर। तो ये टाइटल ट्रैक तुम एंड में डालना, अभी बस ऑडियो डालने देना, पहले मेन वीडियो खत्म करते हैं। बट जो मेरा मन में आइडिया है वो ये है कि जो ओपनिंग सीन है, अंश मेहरा और टीम प्रस्तुत करते हैं, वो जो किताब खुलती है उसमें जो बैकड्रॉप है ना, उसमें दानिश आई रियली वांट समय रैना की पिक्चर्स, लाइक उसमें अभी रतन टाटा, इंद्रा नूई, इन सब की है। वी कैन डू दिस सीन इन दी एंड, बट वो बहुत अच्छा लगेगा इफ वी ऐड दैट डिटेल। एंड उसमें ना इंस्टेड ऑफ रतन टाटा और ऑल दीज पीपल, वी शुड पुट समय की क्लिप्स और मेरी क्लिप्स एंड पुष्पा की क्लिप्स, क्योंकि हमारे पास अब 2-3 वीडियोस आ गए। सो आई वांट टू मेक लाइक अ जेनेरिक सॉर्ट ऑफ एन इंट्रो। सिर्फ ओपनिंग सीन में हमारे को समय का और वो चेंज किया करेंगे, बट आने वाली क्लिप्स में कोई भी अच्छे से मेरे क्लिप्स ढूंढ लो, साइड पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, कोई शिप का सीन देख लो, हाइप के सीन दिखा दो, स्टीव जॉब्स का दिखा दो, हमारे वीडियोस के ना अलग अलग सीन। आई वांट लाइक अ जेनेरिक इंट्रो, उसमें सिर्फ फर्स्ट सीन। अच्छा, बीच बीच में वो जो पन्ने वाले पेजेस है, वो जो पन्ने वाले शॉर्ट्स है, वो समय रैना के ही होंगे, तो वो नहीं आएंगे सेम टू सेम। ठीक है, बाकी सारा 01 था, वो सब बिल्कुल सेम रहेगा। ये है इंडियाज गॉट लेटेंट, जो पूरे और जब वो टाइटल सीक्वेंस आएगा तो यही होगा, डिकोडिंग समय रैना एंड द राइज ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट। तो इसका एक अच्छा सा टाइटल डिजाइन हमारे को करना पड़ेगा। ये है इंडियाज गॉट लेटेंट, जो पूरे देश में छाया पड़ा है। जहां मैंने गैप्स नहीं रखे ना सुस्मित, वहां गैप्स मत डालना। मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए काम बहुत इजी कर दिया, जहां जहां गैप्स है वहीं पे ही फुटेज डालना है, और ज्यादा देखना मत, बस उसको बी रोल में यूज करते रहना है। यूट्यूब पर हजारों सेलिब्रिटी वीडियोस है जिनको 1 मिलियन व्यूज भी नहीं आते, तो इसमें कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू देखना, उसमें हाईलाइट करना कि उतने कम व्यूज है। बट लेटेंट के हर एपिसोड को ऑन एवरेज 25 मिलियन व्यूज मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग उनके थंबनेल्स आ रहे, खट 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 खट, मतलब दिख रहा है कि व्यूज ही व्यूज बढ़ रहे हैं। इस शो का व्यूज मतलब वो चेंज हो रहा है, और नीचे व्यूज 20 मिलियन, ये ऐसे हाईलाइट करके। फॉर्मेट टेक्सास के किल टोनी से इंस्पायर्ड है। इसमें किल टोनी का वीडियो का पूरा डाउनलोड करके डाल देना कि ये ऐसे शो है, अलग अलग शो, जो यूट्यूब पे पिछले 8 साल से ऑलरेडी चल रहा था। बट फिर भी लेटेंट की व्यूअरशिप होते हैं पुष्कर। इस शो का फॉर्मेट टेक्सास के किल टोनी से इंस्पायर्ड है, जो यूट्यूब पे पिछले 8 साल से ऑलरेडी चल रहा था। बट फिर भी जॉर्डन पीटरसन, जो किल टोनी में भी जो सेलिब्रिटीज आए हुए ना, उनका डालना। लेटेंट की व्यूअरशिप किल टोनी से 10 गुना ज्यादा है। अब इसमें तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हो IMAX से करके, वो भी अच्छा लगता है कि तुम लिटरली मतलब एक विंडो खोलो यहाँ पर जाके, मतलब तुम ऐसे अगर व्हाइट बैकग्राउंड करो, अब जैसे इंडिया गॉट लेटेंट ही चल रहा है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट लेटेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। It's a crazy show. व्यूअरशिप किल टोनी से 10 गुना ज्यादा है। समय जो 2020 में साल का 20 लाख रुपए से भी कम कमाते थे, वो आज अपने ब्रांड से हर महीने 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं। बट समय की जिंदगी हमेशा से इतनी बढ़िया नहीं थी।
अब यहाँ पे राइजर और डिप। लेटेंट की कामयाबी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 2017 में। हमारे को ना वो स्लाइड शो वाला टेम्पलेट यूज करना है पुष्कर, जो हमने पहले भी यूज किया हुआ है ना, जब समय अपने प्रिंट इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थे। इसमें उनका पुणे का एक मैप या एक एरियल शॉट दिखा दो और बीच में से टाइपोग्राफी आ जाएगा, पुणे 2017। 21 सितंबर 2017 में 21 सितंबर 2017 इनका कोई अच्छा सा एक और पुणे का एरियल डाला ना, और यही टेक्स्ट आ रहा है। सितंबर 2017 में 20 साल के समय रैना ने पुणे के क्लासिक रॉक कॉफी कंपनी में समय रैना ने पुणे के क्लासिक रॉक कॉफी में भी ना मिड जर्नी की नीड नहीं है, कोई समय रैना का पुराना ही वीडियो उठा लेना। पुणे के क्लासिक रॉक कॉफी कंपनी में इस कैफे के तुम्हें बहुत फोटोज मिल जाएंगे फ्रंट। पहली बार ओपन माइक स्टैंड अप ट्राई किया। इस क्लब में उनका दोस्त कौस्तव का पिक्चर लाइफ ऑफ समय रैना के उसमें है पिक्चर, इंटर्नशिप करता था। ये स्लाइड शो में आ जाएगा ना, स्लाइड शो फॉर्मेट में कौस्तव का पिक्चर। इस हंट के विजेता को पुणे कॉमेडी फेस्टिवल 2 की वीडियोस बहुत सारी हैं। कनन गिल, कुणाल कामरा और हर एक कॉमेडियन का बिस्वा जैसे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलना था। आज समय के शोज विदेश में सोल्ड आउट जाते हैं। इसमें समय का वो दिखाना जो कवर इमेज डला हुआ है अभी यूट्यूब पे, समय का वो यूएस टूर कर रहा है। बट 2017 में उनके पहले एक्ट के लिए क्लब में सिर्फ 12 लोग थे, जिनमें से 10 समय के ही दोस्त थे। अब इसके अंदर हम समय का ही कोई पुराना स्टैंड अप डाल दो, पुराना सबसे पुराना जो तुम्हें दिख रहा है, अलग अलग के ही दोस्त थे। इसमें एक क्लिप है लाइफ ऑफ समय रैना में, उसमें बोलता है कि उसमें सिर्फ 12 जने थे और 10 मेरे दोस्त थे। वो क्लिप का स्निपेट यार डालना है। उसके बाद समय ने काफी टाइम तक पुणे में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ओपनिंग एक्ट्स करे। इसमें विकिपीडिया पे पढ़ लेना कौन से वो 2 थे, एक तो अभिषेक उपमन्यु था और एक और बंदा था, उनकी वीडियोस डाल देना। इससे उन्हें ये समझ आया कि ऑन द स्पॉट लाइव कॉमेडी कैसे होती है। इसमें समय की ही वीडियोस डालते रहना, लाइव स्ट्रीम की, स्टेज एंड क्राउड किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा हंसता है। कोई अगर क्राउड का फोटो है तो वो डाल देना, वीडियो, सॉरी फोटोज नहीं, फोटोज जितनी कम हो सके। 2 साल तक उन्होंने अपनी स्क्रिप्टिंग और डिलीवरी को बेहतर बनाया और फिर पुणे से निकलकर मुंबई शिफ्ट हो गए। पुणे का एरियल, मुंबई का एरियल। 2019 में उन्हें मौका मिला प्राइम वीडियो के कॉमिक्स्तान, इसमें 2019 का वो जो हम टाइटल यूज करते हैं वो, और फिर कॉमिक्स्तान की सीजन 2 में compete करने का, जहां वो एक पार्शियल विनर भी बने। इसमें जो कॉमिक्स्तान सीजन 2 का अगर कोई विनिंग सेरेमनी का वीडियो है, वो सब गले वाले मिल रहे हैं, आवाज आ रही है, तो वो यहाँ पे क्लिप डालना। बट समय को कोई आइडिया नहीं था कि इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे सीरियस म्यूजिक शुरू हो गया। फिर से एक अड़चन पीछे खींच लेगी। इसमें अगर कोई वीडियो जहाँ पे तो समय ऐसे कुछ परेशान हो रहा है, थका हुआ है, इरिटेट हो रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीम का वीडियो डाल दो। और ब्लैकआउट राइज हुआ, ब्लैकआउट। कॉमिक्स्तान जीतने के बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ी, जिससे थोड़ी ब्रांड डील्स भी आनी शुरू हुई और उनका इसमें उनको स्टॉक करना और चेक करना कि इंस्टाग्राम पे उस टाइम कॉमिक्स्तान के टाइम पे वो क्या क्या ब्रांड रील्स कर रहे थे, वो इंस्टाग्राम रील्स को दिखाओ। स्टैंड अप करियर भी उठने लगा। बट फिर 2020 में आ गया लॉकडाउन, जिसने रातों इसमें कोई अच्छा सा न्यूज का क्लिप दिखाना हिंदी का, जिसमें ऐसे आ रहा है कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन, जिसने रातों रात पूरा गैप नहीं आएंगे, ये सब कंटिन्यूस चलेगा, पूरे स्टैंड अप बिजनेस को रोक दिया। इसमें कोई ऐसा क्लिप दिखाना कि दुकानें बंद है, लोगों ने मास्क वास्क पहने हुए हैं। इस टाइम समय की एनुअल इनकम 20 लाख से भी कम थी। इसमें अंशुमन का एक स्निपेट है पॉडकास्ट का, जहां पे वो कहता है कि उस टाइम मेरी 20 लाख रुपए से कम थी। समय के दोस्तों ने उन्हें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन दिया, जिसके बाद समय ने हर रोज दिन रात चेस खेलते हुए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स एंड साथ ही साथ हर अलग अलग लाइव स्ट्रीम का क्लिप डालते रहो। अनअकैडमी पर चेस पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें देख लेना, अगर अनअकैडमी का कोई पुराना लैंडिंग पेज या कोई भी उनका एड वेड अगर मिलता है। समय इतनी लाइव स्ट्रीम्स करते थे कि उनको अपनी आंखों में ऑलमोस्ट एक मेडिकल इश्यू आने लग गया था। ये लाइव स्टोरी में उसने मेंशन किया हुआ है, मैं एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प भेज दूंगा। तो बोला था मेरे को ब्लिंक करना पड़ता है रेगुलरली, उसकी आंखों में एक छोटा सा लाल डॉट भी दिखता है, इफ यू नोटिस व्हेन ही पुट्स टू मच स्ट्रेन ऑन हिज आईज। किसी को नहीं पता था कि ये मामूली लाइव स्ट्रीम्स पर अगले 2 साल में कितना कुछ होने वाला है। राइज आउट। देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम्स पर समय की कॉमिक टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ गेस्ट्स बेहतर होने लगे। उनके चेस लाइव स्ट्रीम्स पर आमिर खान, अरिजीत सिंह, विश्वनाथन आनंद, रफ्तार, 5 टाइम वर्ल्ड, ये हर का लाइव स्ट्रीम का क्लिप डालना है, खट 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 चेंज कर। रैपिड चेस चैंपियन मैग्नस, पता नहीं कितने बड़े लोग आने लगे। इतनी सारी लाइव स्ट्रीम्स करके समय को ये समझ आने लग गया कि इंडियन यूट्यूब ऑडियंस को क्या देखने में मजा आता है। इसमें हम मिड जर्नी सीन डाल सकते हैं रोमानी, कि 2-3 अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, लाइक कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड करके, एक अंकल बैठा हुआ है, एक यंग लड़की बैठी हुई है, एक लड़का बैठा हुआ है अपने अपने लैपटॉप पे, और वो कुछ समय रैना का देख रहे हैं।
इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से 2022 में उनके ऑफलाइन या एक भी फोटो डाल सकते हो, एक फोटो बस लड़की या एक कपल बैठा हुआ है और सामने लैपटॉप रखा हुआ है और उस पर समय रैना का हम आफ्टर इफेक्ट्स में डाल देंगे और उसको 3D में पैन कर देंगे। शो की भी टिकट्स बिकने लगी। बट ऑफलाइन शोज में इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती। इसमें अंशुमन का एक पॉडकास्ट क्लिप है जहाँ पे वो बोलता है, पूरा कैलकुलेट करके बताता है कि इतने काट लो, बुक माई शो के हटा लो तो इतने कम बचते हैं, तो वो पार्ट हमारे को डालना है। समय को पता था कि उन्हें अब कुछ तो हटके करना ही होगा। 4 साल लाइव स्ट्रीम, स्टैंड अप कॉमेडी एंड ब्रांड कोलैब्स, ये सबका फुटेज, इतना फुटेज है उसके वीडियो चैनल पे कोई हद नहीं है। करने के बाद उन्होंने YouTube के लिए अपनी टीम के साथ बैठकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जिसका YouTube पर सक्सेसफुल होना इसमें सारे लेटेंट की क्लिप्स डालते हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड था। एक सेकंड, इसमें राइज ब्लैकआउट, एक सेकंड, ऑलमोस्ट गारंटीड मतलब समझाता हूं। बट उससे पहले हमें यह समझना होगा कि YouTube एंड यूट्यूबर्स पैसे कैसे कमाते हैं। इसमें तुम बियर बाइसेप्स का दिखा सकते हो, राज शमानी का दिखा सकते हो, 2 एग्जांपल्स। YouTube अपना पैसा आपको एड्स दिखाकर कमाता है। आप YouTube पर जितना समय खर्चोगे उतनी ही एड्स देखोगे, जिसकी वजह से YouTube और हमारे को स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ेगी। सो रोमानी, दिस इज समथिंग दैट यू कैन क्रिएट अ गुड लुकिंग स्लाइड और पैसे कमाएगा। नाउ YouTube चेक करता है कि हर व्यूअर एक वीडियो को कितनी देर तक देख रहा है, जिसको बोलते हैं वॉच टाइम। वॉच टाइम तभी बढ़ेगा जब व्यूअर आपकी वीडियो को अंत तक देखेगा। अब जाहिर सी बात है कि जितना वॉच टाइम बढ़ेगा उतना ही YouTube आपको पसंद करेगा। ये सब एक एक करके इट्स लाइक एन इन्फोग्राफिक। और वॉच टाइम सिर्फ फैंसी एडिटिंग या प्रोडक्शन से नहीं बढ़ता। और यही पर समय रैना एक ऐसी बाजी खेलते हैं जिसने YouTube के पूरे एल्गोरिथम को क्रैक कर दिया। ये राइजर ब्लैकआउट। अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए लेटेंट की टीम ने 5 टेक्निक्स यूज करी। नंबर 1, उन्होंने एक लाइट हार्टेड नीश। अब इसमें सब में एक पन्ना आएगा दानिश, एवरीथिंग लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तो आएगा ही, वो स्क्रिप्ट में समझ आ जाएगा। बट फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पुट अ गुड टाइटल ना, जो मैक्सिमम ऑडियंसेस आराम से देख पाए। आजकल सबको शाम को काम से वापस आकर लाइट हार्टेड कंटेंट या कॉमेडी देखना पसंद आ रहा है। लेटेंट इज द परफेक्ट फिट फॉर दिस नीड, क्योंकि आप आराम से पीछे बैठकर दिमाग को बंद करके इसको देख सकते हो। पैनल पर एटलीस्ट 4 से 5 लोग हमेशा होते हैं जो शुरू से ही मजाक के मूड में होते हैं। तो एक घर पर बैठा व्यूअर ऐसा फील करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कोई इन पर्सन शो देखने आया। कहीं किसी भी में अगर डाउट आ रहा हो ना तो मुझसे पूछ लेना कि क्या दिखाना है। नंबर 2, मेरे हिसाब से बहुत इजी है, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। इस शो में हर पार्टिसिपेंट क्लिप्स मिल जाएगी। अब मैं गैप्स पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेटेंट पर इतने इंस्पायरिंग लोग आते हैं कि आप खुद इंप्रेस हो जाओगे। हाँ, अब इसमें मुझे रैपर वाली वो लड़की आई है अभी रिसेंटली राखी सावंत के एपिसोड में, जब वो कहती है कि मेरे को मेरा मुंह छुपाना था, मैं चाहती हूँ लोग मेरे को अपने चेहरे के लिए देखे, तो वो क्लिप डालना। सोचिए पूरे देश से कितने लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर दिखाना कि वो जीत रहा है, लाइक वो जीत रही है, वो रो रही है, एकदम उसको आंसू आ रहे हैं, वो दिखाना है। मुझे तो खुद इस एपिसोड को देखकर आंसू आ गए। और फिर इससे जस्ट पहले वो दिखाना वो जीत भी गया है, तो मुझे वो 2 जोक भी डालने हैं। वो जीत भी गया है और फिर पीछे चल रहा है कि वो सबसे खुश हो रहा है, ये वो हो रहा है, और फिर मेरे वॉइस ओवर आ रहा है कि मुझे खुद आंसू आ गए थे। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स। नंबर 3 एपिसोड्स। इसमें फिर से थोड़ा सा क्लिप्स डाल देना जहाँ पे वो सब गले वाले मिल रहे हैं। नंबर 3, क्वर्की एंड रेलेवेंट जजेस। हर पैनल में समय एक कमेडियन एंड एक सेलिब्रिटी को जरूर रखते हैं। कमेडियन से ह्यूमर बढ़ता है एंड सेलिब्रिटी से वीडियो के इंप्रेशंस। अगर आप पैनल के 4 जजेस में, और जब मैं बोलता हूँ ना जजेस उनको स्कोर करते हैं, तो नीचे उनका वो स्कोरिंग वाला सीन दिखाना। रघुराम हो गए, ये सब लोग, दीपक कलाल हो गए, पुनीत सुपरस्टार हो गए, इन सब की क्लिप्स को यूज करना। एक ही भी फैन हो तो आप अंत तक बैठोगे तो सी कि आपका फेवरेट क्रिएटर कैसे रिएक्ट करता है। आप जब भी एक सेलिब्रिटी को अपने चैनल पर इनवाइट करते हो तो आपका कंटेंट उनकी पूरी ऑडियंस को दिखाया जाता है, जिससे चैनल का ट्रैफिक बढ़ जाता है। ये रोमानी इट्स एन इन्फोग्राफिक, ये हम विजुअली दिखा। YouTube की भाषा में इसको कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। यू शुड शो हाउ एनी टाइम दिस अगर समय रैना के शो पे एनी टाइम अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी एंड रणवीर आलावादिया ये तीनों आते हैं, तो फिर इन तीनों की ऑडियंस का कंटेंट वुड बी पुश्ड, सॉरी समय का कंटेंट विल पुश टू ऑल दीस 3 का ऑडियंस बोलते हैं। नंबर 4, मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसल्ड। समय ने अपने शो के सारे एक्सप्लिसिट एंड कंट्रोवर्शियल कंटेंट को मेंबर्स ओनली कंटेंट में ऐड कर दिया है। ऑफेंसिव कंटेंट या डार्क ह्यूमर को पब्लिकली रिलीज करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से AIB एंड आशीष सोलंकी जैसे AIB के रोस्ट का वीडियो डालना, बड़े क्रिएटर्स को भी आशीष सोलंकी का डालना, अश्नीर ग्रोवर ने आशीष सोलंकी को बोला कि एपिसोड ही डिलीट करो, तो वो सब डालना पहले काफी नुकसान हो चुका है। इसमें टीवी क्लिप डालना कि लोग AIB के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ये डालना कि कुशा कपलिया कह रही है कि मुझे बताया नहीं था। अश्नीर ग्रोवर का कोई क्लिप है, तो ये तीनों क्लिप्स डालना, बिकॉज तीनों बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पर समय ने ये गलती नहीं करी। उन्होंने YouTube पर पेड मेंबरशिप लॉन्च कर दी, जिसमें 60, 600 और 2000 रुपए तक के प्लान्स आप खरीद सकते हैं। एंड अगर आप उनके 5 लाख मेंबर्स को 60 से भी मल्टीप्लाई करें, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है YouTube की, एंड YouTube की 30% कमीशन को डिडक्ट भी करे। यहाँ पर रोमानी ये पूरा डिडक्शन दिखाने के लिए वी हैव टू पुट एन इन्फोग्राफिक। अभी समय विल अर्न ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ पर मंथ। उन्होंने एक नया चैनल लॉन्च किया है फॉर लेटेंट क्लिप्स, जहां वो थोड़ा सा मेंबर्स ओनली कंटेंट फ्री में रिलीज करते हैं, जिससे नए लोगों को मेंबरशिप खरीदने का मन करे। जो इंसान पैसे खर्च कर डार्क कॉमेडी कंज्यूम कर रहा है, उसके ऑफेंड होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं।
यहाँ पर कोई डार्क कॉमेडी का हमारे को डालना चाहिए। नंबर 5, डिस्टिंक्ट आईपी एंड ब्रांड आइडेंटिटी। ये पूरा सेल्फ अवेयर पॉइंट सिस्टम, एक डिस्टिंक्ट लोगो जो एपिसोड 1 के बाद बना था। एपिसोड 1 का भी दिखाना, ये ना स्प्लिट स्क्रीन करना है, एपिसोड 1 का बोर्ड लेफ्ट पे, एपिसोड 2 का राइट पे, और नीचे लिख देना एपिसोड 1 एपिसोड 2। द लोगो ट्रांजिशन वो जो एक 3D में से उड़ते हुए आता है, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इंडियाज गॉट लेटेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, जिससे हमें खुद एक वैल्यूएबल आईपी बना पा रहे हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ आप ओन करते हो, एक ऐसा यूनिक ऑफरिंग जो, अब जब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिकली आप ओन करते हो, तो लेटेंट के क्लिप्स हो गए, उनका इंस्टाग्राम दूसरों के लिए कॉपी करना बहुत टफ हो। कौन बनेगा करोड़पति या इंडियाज गॉट टैलेंट, दोनों ऐसे आईपीज हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। तो इसमें कौन बनेगा करोड़पति का पहले अमिताभ बच्चन का दिखाना, फिर यूएस का दिखाना, और फिर इंडियाज गॉट टैलेंट यहाँ का दिखाना, फिर एक वहां का भी दिखाना। मैं चाहता हूँ 4 क्लिप्स दिखाओ जिससे लोगों को पता चले। सिमिलरली YouTube पर अब इंडियाज गॉट लेटेंट भी एक बहुत सक्सेसफुल आईपी बन गया है। एंड ये मत समझना कि समय ने ये पहली बार ट्राई किया है। उन्हें YouTube पर सुप्रीम लीडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले एक और आईपी बनाया था जिसका नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस आईपी पर समय ने ज्यादा लोग, ज्यादा बड़ा वेन्यू, ज्यादा खर्च, सब कुछ ज्यादा किया था, बट वो तब भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना लेटेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने उस शो में इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2 साल में भी एक अच्छा सा क्लिप डालना, उसमें बहुत फनी क्लिप्स है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2 साल में यूएस या यूके के कॉमेडियंस इंडियाज गॉट लेटेंट का आईपी समय से, इसमें कोई 2 पॉपुलर यूएस या यूके कॉमेडियंस डाल देना और उनका बस क्लिप डाल देना स्टैंड अप। एक यूरोप गॉट लेटेंट या अमेरिका गॉट लेटेंट भी लॉन्च कर दे। बट आज हम तो ना कंटेंट बनाते हैं और ना ही कॉमेडी करते हैं, तो इन सब से हम क्या सीखे? समय की इस कहानी से मुझे क्या फायदा, एक एक करके बताता हूं। अब इसमें राइजर ब्लैकआउट स्टैंड अप कॉमेडी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाते हैं। आपके सबसे बढ़िया जोक तब लैंड करते हैं जब सामने बैठी ऑडियंस उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रही हो। ये सारा आप लोग समझ लोगे। उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले अपना बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ पर ना एक अंकुर वारिको और उनका बहुत फनी इंटरव्यू था, उसके क्लिप कोई डालना अगर कोई उन्होंने अपने ऊपर जोक मारा हो, बट वो कश्मीरी वाला मत डालना, कोई सेफ जोक डालना। बोलते नहीं, इसलिए एज अ फाउंडर इसमें भी अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है, कुछ फनी है, बोलते नहीं। जो सब सोचते तो है बट डर के मारे कभी बोलते नहीं। इसमें अगर कोई अच्छा फनी जोक है समय रैना का, जो 5-10 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, वरना वो जो उनका 2000 रुपए वाला था कि 2000 रुपए मेरे वसूल हो गए, तो वो वाला अभी हम क्लिप का सिर्फ एंडिंग का पार्ट डाल सकते, पूरा नहीं, सिर्फ एंडिंग का, और बस ऑडियंस का रिएक्शन वो वाला। या अमिताभ बच्चन का जो उन्होंने बोला था कि मैं बच्चे को मारूं या इसको मारूं, जो नरक उनका स्टैंड अप था, उससे कोई अच्छा क्लिप उठा लो। इसलिए एज ऑडियंस का रिएक्शन दिखना बहुत जरूरी है। फाउंडर आपके लिए टाइम के साथ इवॉल्व करते रहना बहुत ही जरूरी है। एंड डे 1 से एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए लैब में वो ये सब बोल देते हैं। फैक्ट बोट की भी पेड कोलैब में वो ये सब बोल देते हैं। बोट की कोलैब का जो भी रील है उसका एंडिंग पार्ट डालना है, जिसमें बोलता है अरे 60 रुपए मेरी मेंबरशिप के दे दो, ये मत खरीदो। इस पार्ट में कुछ भी करने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझिए। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म हमेशा से इतने क्रिएटिव थे, हम सबकी तरह शुरुआत में उन्होंने भी बहुत कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट लाइव स्ट्रीम लाइफ ऑफ समय रैना में ना उन्होंने बताया कि मैंने लिटरली कॉमेडियंस के जोक उठाए और कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज, तो वो पार्ट मुझे दिखाना है यहाँ पर एग्जैक्टली तक पहुंचे। मेरा नाम है अंशमेरा एंड आप सीख रहे हैं फ्रॉम द प्लेबुक। अब इसमें हमको क्या करना है, जो लास्ट शॉट है ना दानिश, में चाहता हूँ कि एकदम वो लाइट्स फ्लिकर करे, उसमें ना हवा आ जाए एकदम, ठीक है। एंड बेसिकली वो जो किताब है समय वाली, वो ऊपर ऐसे फटफट 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 हो रही है, ठीक है, ऊपर ही है, ठीक है। एंड कैसे था, हमने लास्ट शॉट कैसे बनाया था, इस तरफ से होगी ना, हाँ ऐसे ऐसे वो कर रही होगी, और फिर जो उनकी फोटोज है समय रैना की वो सारी उड़ जाएगी, जो पेपर कप है वो भी सारा इधर उधर गिर जाएगा। थोड़ा सा मतलब दिखा सकते हो ना, थोड़ा सा कुछ इधर उधर गिर रहा है, सब उड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो लेटन के कमरे में सारे से तूफान आ जाए और फिर किताब करके ढम, एकदम ढम, एंड देन यू हैव द प्लेबुक का लोगो। सीख रहे हैं फ्रॉम द प्लेबुक। एंड देन वो प्लेबुक 2-3 लोगों के लिए रहेगा, 2-3 सेकंड के लिए रहेगा, फिर इट फेड्स आउट। अगर आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग कहानी और केस स्टडी सुननी है तो इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। तो यहाँ पर अब हम वो प्लेलिस्ट को डाल दिया करेंगे, दिस विल फेड इन ऑन म्यूट, ठीक है। तो अब हाउ टू स्प्लिट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, सुस्मित यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द ऑडियो वीडियोज, डाउनलोड करो, पुट द ऑडियो टुगेदर। Romani, you start thinking about all the infographic parts, and the second half में जितनी भी B-roll that you can find, just take that, push कर first half की B-roll तुम ढूंढना शुरू करो। Danish, you start with the 3D scenes, and yeah, thumbnail के लिए right now I've hired Anchal who made the Ambani का thumbnail. I'm thinking that Harsh can just focus on cutting edge, and then Anchal will do the thumbnail and title, so that we'll figure out with her. That's not a problem for us. To set proper timelines, Thursday तक एंड फ्राइडे आफ्टरनून तक द ऑडियो शुड बी डन, एंड फ्राइडे से लेके सैटरडे तक वी शुड बी एबल टू फिनिश द बी रोल एंड ए रोल टुगेदर विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द 3D सीन्स। संडे छुट्टी है, एंड देन मंडे को लास्ट फिनिशिंग टचेस करके ऑन ट्यूसडे वी शुड रिलीज दिस वीडियो। तो प्लीज़ कहीं पर भी ब्लॉकर आ रहा हो, कुछ भी डिले हो रहा हो, फर्स्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स
that you can get done easily. Sequentially काम नहीं करना है when you're solving a problem. पहले ये देखो कि मुझे जितना काम दिया गया है पहले मैं क्या क्या रैप कर सकता हूँ फटाफट. जब नोन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर अननोन्स पे जाना है, पहले नोन्स को क्रैक नहीं करना है. तो यू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, मेरे को अगर 10 चीजें दी अंश ने, 10 में से मैं क्या 7 पहले फटाफट इजी वाली खत्म कर लूं. यस, जो डिफिकल्ट वाली है वो एंड में करना. ठीक है. सो let me know if you need any help. Thank you. Now the next video is me reviewing the first sound design edit of a certain chunk of the documentary. Basically, after our scripting, we shoot the A-roll and then we edit our A-roll and we sort of create the entire sound end to end. So after your topic and scripting, your sound is the most important element of your video. Sound creates the most heavy impact on how people perceive your video. If I add comedy music behind a bullying video, the viewer will perceive it as a funny joke. If I add sentimental music behind a basic friendly prank, the viewer will get angry. Hence, music can completely flip the video's experience, and we get our music from Artlist, Motion Array and Epidemic Sound. In fact, I always think that we as human beings also play a background music in our heads when we live life. If you live your life with sentimental music playing in your head, you will always feel like the entire world is against you. And similarly, if you live your life with comedy music inside your head, which is not at all recommended, by the way, even the most traumatic events will start looking like humor to you. Because I know it's very sad, but only humor can help you survive the most painful trauma. It is the most popular way in which traumatic people sort of mask negative things in life. They just laugh at it, which is not recommended. But it's just an interesting way of looking at life, you know, if you recognize the importance of music that plays in your videos as well as in your heads. I thought this example will help you understand the importance of background music in editing. So for this specific video, you need to observe how I try to plan every little thing. I'm trying to be super explicit about what I want, and I've set timelines for it. So let's watch the video. Alright, 3 minute के बाद का audio feedback is this. कॉमिक्सतान जीतने के बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ी, जिससे थोड़ी ब्रांड डील्स भी आनी शुरू हुई. इसमें ना वी कैन एक्चुअली शो उस टाइम के कॉमिक्सतान के इंस्टाग्राम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइक वेब पे, एंड देन वो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि इतने इतने व्यूज आ रहे हैं. और उनका स्टैंड अप करियर भी उठने लगा. बट फिर 2020 में आ गया लॉकडाउन, जिसने रातों, यहाँ पर न्यूज क्लिपिंग्स आनी चाहिए लॉकडाउन के टाइम की मास्क पहनते हुए, तो रात पूरे स्टैंड अप बिजनेस को रोक. यहाँ पर ना कोई हमारे को ऐसा न्यूज़ क्लिप ढूंढना चाहिए जहाँ पे वो बोल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है, कि कोई नहीं जानता आगे जाके क्या होगा. एंड बाय द वे, अगर वो स्पेसिफिक 2020 की रेंज में करना ना, तो मैंने अंश चावला को एक टेक्निक बताया था. यूट्यूब पे तुम कॉलन डाल के डेट रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उन्हीं डेट रेंजेस का वीडियो आता है. इस टाइम समय की एनुअल इनकम 20 लाख से भी कम थी. यहाँ पे अंशुमन का स्निपेट आएगा. समय के दोस्तों ने उन्हें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन दिया. यहाँ पे बलराज का लाइव स्ट्रीम का क्लिप डाल दो कि हाय 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 ऐसा शुरू हो गया, ऐसे कुछ भी. जिसके बाद समय ने हर रोज दिन रात चेस खेलते हुए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स एंड साथ ही साथ अनअकैडमी पर चेस पढ़ाना शुरू कर दिया. अगर इसमें एक ऐसा स्निपेट मिल जाए जहाँ पे, और ये मैंने देखा हुआ है, समय अपने लाइव स्ट्रीम में बोलता है कि गाइस अनअकैडमी का लिंक नीचे है, मैं आज वहां पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्लिप यहाँ डाल देना. समय इतनी लाइव स्ट्रीम्स करते थे कि उनको अपनी आंखों में ऑलमोस्ट एक मेडिकल इशू आने लग गया था. इसके अंदर अब समय का एक लाइफ ऑफ समय रैना के उसमें उसने बोला है कि मेरे को आंखों में इशू आ गया, मुझे रेगुलरली ब्लिंक करना पड़ता है. किसी को नहीं पता था कि ये मामूली लाइव स्ट्रीम्स पर अगले 2 साल में कितना कुछ होने वाला है. यहाँ पे रफ्तार इन सब का डालना, और फिर इस वाले के बीच में कोई ऐसा डालना, कोई ऐसा लाइव स्ट्रीम जहाँ पे आमिर खान और अरिजीत सिंह का कुछ ऐसे क्लैश हो रहा है, कुछ ऐसे वो कुछ बोल रहे हैं कुछ चेस में, या मे बी ही इज इंट्रोड्यूसिंग, समय रैना इज इंट्रोड्यूसिंग. देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम्स पर समय की कॉमिक टाइमिंग, एंड देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम्स पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो व्यूज का टिकर वाला दिखा सकते हैं कि व्यूज बढ़े टक 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 करके. समय की कॉमिक टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ गेस्ट बेहतर होने लगे. यहाँ पर कोई और अच्छा गेस्ट जैसे मैग्नस है, या मैग्नस के अलावा तुम और भी अरिजीत सिंह है, आमिर खान है, कोई और सेलिब्रिटी देखो अगर बीच में और भी कोई आ जाए. उनके चेस लाइव स्ट्रीम्स पर आमिर खान, अरिजीत सिंह, विश्वनाथन आनंद, रफ्तार, 5 टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन मैग्नस, पता नहीं कितने बड़े लोग आने लगे. इतनी सारी लाइव स्ट्रीम्स करके समय को ये समझ आने लग गया कि इंडियन यूट्यूब और ये ना सुस्मित, इसका म्यूजिक का स्टेम 2-3 कम करो, बहुत ही अग्रेसिव है. ऐसा लग रहा है पीछे कोई वॉर शुरू होने वाला है.
जबकि वी वांट टू गिव अ सेंटिमेंट ऑफ समथिंग बिल्डिंग अप, समथिंग इवॉल्विंग, जैसे थिंग्स आर फिगरिंग आउट, लाइक थिंग्स आर कमिंग इन प्लेस. इट हैज टू बी मोर motivational and more a progressive thing, like a cinematic progressive thing, rather than dung dung dung, because this is trailer music. What you've put in the background is trailer music and there is no need for trailer music. यहाँ पर ऑडियंस को क्या देखने में मजा आता है, इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से 2022 में उनके ऑफलाइन शो आता है. अब यहाँ पर एक उसका स्निपेट डाल सकते हो जहाँ पे कोई बहुत फनी जोक बोल रहा है, या वो ऐसे एक मैंने विदित गुजराती और उसका देखा था मैग्नस वाले का लाइव स्ट्रीम, तो उसमें बोलता है अगर आपको स्वाद आ गया हो तो जरा कमेंट करके बताओ, चैट बताओ कैसा आ रहा है, चैट बताओ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ डाल सकते हो. इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से 2022 में उनके ऑफलाइन शो की भी टिकट्स, ये तो ट्रेलर म्यूजिक हटाओ, उसमें बहुत ज्यादा बिकने लगी, बट ऑफलाइन शोज में इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती. तो इसमें ना क्यूरियस टाइप डालो कि कुछ क्यूरियस सा है. ये जो इतना धड़ 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 आ रहा है, इसमें एक्चुअली अंशुमन के पॉडकास्ट में पूरा ब्रेक डाउन करके बताता है कि हमारे पास कितना कम पैसा बचता है. तुम्हारे को वो पार्ट डालना, वो भी ट्रिम करना, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच मत करना, सिर्फ 8 से 7-8 सेकंड ही मैक्सिमम वो समझाना है. समय को पता था कि उन्हें अब कुछ तो हटके करना ही होगा. 4 साल लाइव स्ट्रीम, स्टैंड अप कॉमेडी एंड ब्रांड कोलैब्स करने के बाद, में तो हर एक का एग्जांपल है तुम्हारे पास, उन्होंने YouTube के लिए अपनी टीम के साथ बैठकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, यहाँ पे तो दानिश का ही सीन आ जाएगा, जिसका YouTube पर सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट गारंटीड था. एक सेकेंड, ऑलमोस्ट गारंटीड मतलब समझाता हूं, बट उससे पहले हमें यह समझना होगा कि YouTube, ये ड्रॉप बहुत ही बढ़िया. सेकेंड, ऑलमोस्ट गारंटीड मतलब समझाता हूं, बट उससे पहले हमें यह समझना होगा कि YouTube एंड यूट्यूबर्स पैसे कैसे कमाते हैं. यहाँ पे MKBHD, समीर रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इन सबके डालना कमाते हैं. अब यहाँ पे चैप्टर आएगा, में वो चैप्टर आएगा. YouTube अपना पैसा आपको एड्स दिखाकर कमाता है. आप YouTube पर जितना समय खर्चोगे उतनी ही एड्स देखोगे, जिसकी वजह से YouTube और पैसे कमाएगा. यहाँ पर कोई ऐसा पॉडकास्ट डाल दो किसी और यूट्यूबर का, मे बी अंकुर वारेकू का या राज शमानी का, किसी का भी, जो यूट्यूब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यूट्यूब वॉच टाइम की बात कर रहे हैं. नाउ यूट्यूब चेक करता है कि हर व्यूअर एक वीडियो को कितनी देर तक देख रहा है, जिसको बोलते हैं वॉच टाइम. वॉच टाइम तभी बढ़ेगा जब व्यूअर आपकी वीडियो को अंत तक देखेगा. अब जाहिर सी बात है कि जितना वॉच टाइम बढ़ेगा उतना ही यूट्यूब आपको पसंद करेगा. और वॉच टाइम सिर्फ फैंसी एडिटिंग या प्रोडक्शन से नहीं बढ़ता. और यही पर ये भी म्यूजिक बहुत बहुत पंप अप हो गया उसमें, ये इस टाइम नहीं चाहिए. पहले बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, उसी को आगे लेके चलना है. समय रैना एक ऐसी बाजी खेलते हैं जिसने यूट्यूब के पूरे एल्गोरिदम को क्रैक कर दिया. अपने वॉच टाइम को बढ़ा. अब ये जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप एक्चुअली मेरे लास्ट डायलॉग पे ही आना चाहिए, बट द ड्रॉप कम्स वेरी लेट. अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए लेटेंट की टीम ने 5 वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए ये म्यूजिक तो चेंज कर दो, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ ग्लिच हो रहा है, कुछ खराब चल रहा है. लेटेंट की टीम ने 5 टेक्निक्स यूज करी. नंबर 1, उन्होंने एक लाइट हार्टेड नीश चुना जो मैक्सिमम ऑडियंसेस आराम से देख पाए. आजकल सबको शाम को, ये बहुत ही प्लेफुल है, लेट्स नॉट हैव दिस, थोड़ा सा सिनेमैटिक चाहिए, थोड़ा सा हाई क्वालिटी. को काम से वापस आकर लाइट हार्टेड कंटेंट या कॉमेडी देखना पसंद आ रहा है. लेटेंट इज द परफेक्ट फिट फॉर दिस नीड, क्योंकि आप आराम से देख पाए. इसमें कोई स्निपेट डालोगी, लंबा वॉइस ओवर है ना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा डालना, राखी सावंत का या कुछ चीज का. आजकल सबको शाम को काम से वापस आकर लाइट हार्टेड कंटेंट या कॉमेडी देखना पसंद आ रहा है. इसमें पुनीत का या दीपक का कुछ इंटरेस्टिंग डाल देना. लेटेंट इज द परफेक्ट फिट फॉर दिस नीड, क्योंकि आप आराम से पीछे बैठकर दिमाग को बंद करके इसको देख सकते हो. ये इसमें तुम इंट्रो का इनका वो सीक्वेंस डालना कि इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ, ये वाला स्निपेट डालना. यहाँ पर पैनल पर एटलीस्ट 4 से 5 लोग हमेशा होते हैं जो शुरू से ही मजाक के मूड में होते हैं. तो यहाँ पर मजाक का कुछ इंटरेस्टिंग सा जोक डालना, महीप सिंह का या किसी आदमी का. तो एक घर पर बैठा व्यूअर ऐसा फील करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कोई इन पर्सन शो देखने आया हो. नंबर 2, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम. इस शो में हर पार्टिसिपेंट को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड मिलते हैं, एंड परफॉर्म करने से पहले उसे अपने आप को 10 में से स्कोर करना होता है. इसमें ना प्रॉपर तुम इनके इंट्रो में से क्लिप्स निकाल सकते हो. एक परफॉर्मर दिखाया, फिर तुमने उसका वो सीन दिखाया इंट्रो में, वो दिखाते हैं कि वो चिट में साइन भर रहा है, तो ये सब बी रोल में आ सकता है. टैलेंट दिखाने के बाद फिर सारे जजेस उसको एक एक करके स्कोर्स देते हैं. और अब इसमें जब एक एक करके स्कोर देते तो टक 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 उनका वाला पार्ट आया. अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकला जो पार्टिसिपेंट ने अपने आप को दिया था परफॉर्मेंस से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट ये शो जीत जाता है.
तो इसमें जीतने वाला दिखाना विनर का। इंडियाज गॉट टैलेंट या डांस इंडिया डांस जैसे शोज में परफॉर्मेंस देखकर ही एज एन ऑडियंस आप पहले ही गेस कर लेते हो कि जजेस इसको कितना स्कोर देंगे। इसमें अनु मलिक या किसी का एक दिखाना है कि बॉम्बे आ जा, ये वो ऐसे व्हाटएवर सेलिब्रेशन टाइप। ऐसे शोज में ऑब्वियस होता है कि कौन जीतेगा, बट इंडियाज गॉट लेटेंट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेटेंट पर इतने इंस्पायरिंग लोग आते हैं कि आप नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग विक्ट्री दिखाना। लेटेंट पर इतने इंस्पायरिंग लोग बीच में मैं गैप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो स्निपेट डालना कि ओ एकदम सब लाइक सेलिब्रेट कर रहा है कि ओफ हो गया। लेटेंट पर इतने इंस्पायरिंग लोग आते हैं कि आप खुद इंप्रेस हो जाओगे। यहाँ पर हम वो लड़की का रैप डालते हैं। सोचिए पूरे देश से कितने लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। वो लड़की का जोक डालना फनी वाला, उसने बहुत फनी जोक मारे थे। मुझे तो खुद इस एपिसोड को देखकर आंसू आ गए थे। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स। मुझे तो खुद इस एपिसोड को देखकर आंसू आ गए थे। तो आंसू आ गए थे तो जीतने वाला सीन दिखाना है एपिसोड्स। नंबर 3, क्वर्की एंड रेलेवेंट जजेस। इसमें एक कमबैक देना, समय उसको कुछ बोलता है और फिर वो बहुत ही बढ़िया कमबैक देता है, तो लोग बोलते हैं ओ एकदम लाइक इसमें ना बहुत फन डल सकता है। तो ठीक है, अभी हो गए ना 7 मिनट, तो अभी बस इतना ही टारगेट करो। ठीक है, बस इतना ही टारगेट करो। सुस्मित अभी इतना ऑडियो फिक्स करता है, फिर तुम तब तक इसका ए रोल सोचते रहो। The next video is me trying to save time in editing as we move closer to the release deadline. For this specific video, observe how I am clearly specifying what the problem is, and I'm also listing out what are we trying to do to fix it. How I dedicate a task to each and every member on the call so that everyone knows exactly what they need to do. And how I have arranged my team in a parallel set of tasks for each and every person, so nobody is blocked on any other person's progress. And as a lead editor, you need to learn these leadership skills. So let's watch. Alright folks, तो ये वीडियो मैं सारे एडिटर्स के लिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी फ्राइडे रात कंप्लीट हो गई और मंडे को हमारे को ये वीडियो रिलीज करना है। तो हमारे पास सिर्फ सैटरडे और संडे का टाइम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे को संडे भी इस पे काम करना पड़ेगा, वरना वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अब क्या करना है, मैं एक एक करके सबको उनका प्रोग्रेस बताता हूँ। सबसे पहली बात, सुस्मित मेरे साथ अभी बैठ के सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो में मैं फीडबैक दूंगा सुस्मित को 7 मिनट के बियॉन्ड फीडबैक का, तो वो ऑडियो फिनिश कर लेगा। बीच बीच में जहां जहां पर भी गैप्स है उसका इनपुट ओम ने देना है सुस्मित को। तो ओम और सुस्मित कंप्लीट करके इसमें जो जो बीच में पार्ट्स डालने हैं, सीन्स डालने हैं आफ्टर एवरी सेंटेंस, वो ओम इनपुट देगा, सुस्मित ओम एक साथ इसको खत्म कर लेंगे। अब आते हैं मेन ए रोल पे। तो जैसे ये जो पार्ट है जहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं वो है मेरा ए रोल, और ए रोल के ऊपर जो डालना है सपोर्टिंग बी रोल, पहले उसको फिनिश करते हैं। सपोर्टिंग बी रोल में हम पार्ट्स को स्प्लिट कर रहे हैं। तो पहले 6 मिनट यहां तक कर लेगा पुष्कर, यहां तक 11-12 मिनट तक कर लेगा मनीष, और ये जो आखिरी का 12 मिनट से लेके अंत तक है 16 मिनट तक, ये कर लेगा आदित्य। कुछ नहीं करना, जो वीडियोस ऑलरेडी समय रैना की पड़ी हुई है पुष्कर के पास, ओम के पास, तुम सबके पास, उसको चाहे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। सबके कंप्यूटर पे वो वीडियोस होनी चाहिए, और बस बी रोल पे जहां पे मैं बोल रहा हूँ वहां पे सपोर्टिंग बी रोल डाल दो। बस इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं बोल रहा हूँ कोई भी सेंटेंस उसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से स्पेसिफिक बी रोल डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो मेरा सपोर्टिंग ए रोल है उसके सपोर्टिंग में बस वो बी रोल डाल दो। जो बीच के गैप है वो सुस्मित और ओम फिक्स कर लेंगे। इंट्रो में जो चेंजेस करने हैं वो हम बाद में करेंगे, और दानिश तब तक 3D सीन्स एडिट कर लेंगे। दानिश के सारे सीन्स को हम यहाँ पे फिट कर देंगे जब वो चैप्टर्स के नाम आ रहे होंगे। तो जब चैप्टर के नाम आएंगे वहाँ पे 3D सीन आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। अभी कल 4-5 बजे तक बैठ के यही खत्म करना है। 4-5 बजे तक जो हमारा मेन ए रोल का बी रोल जब कंप्लीट हो जाएगा, गैप्स का कंप्लीट हो जाएगा, दानिश के सीन्स फिट होने लग जाएंगे, तो 6-7 बजे तक सुस्मित का भी ऑडियो पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। कल 7-8 बजे तक बैठ के सारी चीज़ों को पुट टुगेदर करना है। बट उसके लिए जो मेजर पार्ट है वो है जो मैं ए रोल बोल रहा हूँ उसका बी रोल का सपोर्ट में क्या है। रोमानी को इसका स्टोरी बोर्ड इमीडिएटली कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर रोमानी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेल दीक्षिता, यू स्प्लिट इट। ठीक है, आधा दीक्षिता कर लेगी, आधा रोमानी कर लेगी, बट वी नीड ऑल हैंड्स ऑन दिस वीडियो। वी कैन नॉट लूज मोमेंटम अगेन। मंडे को अगर बोला है, डेडलाइन डाली है, तो करना ही करना है। whatever it takes, we will make sure that every single person in the team, मेरे को भी अगर एडिट पे आना पड़ा तो मैं भी आके फाइल्स को एडिट करना शुरू कर दूंगा। बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट 3 एडिटर्स विद दानिश, विद दीक्षिता, विद रोमानी, so many people working in their own individual capacities,
वी कैन एक्सेलरेट दिस, ठीक है। तो अब मैं इस लूम को स्टॉप कर रहा हूँ। आई विल सेंड सुस्मित अनदर लूम वेर आई विल गिव हिम फीडबैक आफ्टर द 7 मिनट मार्क। नंबर 3, क्वर्की एंड रेलेवेंट जजेस। हर पैनल में समय एक कमेडियन एंड एक सेलिब्रिटी को जरूर रखते हैं। कमेडियन से ह्यूमर बढ़ता है एंड सेलिब्रिटी से वीडियो के इंप्रेशंस। अगर आप पैनल के 4 जजेस में से एक के भी फैन हो तो आप अंत तक बैठोगे टू सी कि आपका फेवरेट क्रिएटर कैसे रिएक्ट करता है। इसमें ना मुझे कोई तो दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, राखी सावंत, इन सब का कुछ तो अच्छे रिएक्शन डालने हैं। बहुत फनी था दीपक कलाल के, मुझे पक्का डालना है यहाँ पे। आप जब भी एक सेलिब्रिटी को अपने चैनल पर इनवाइट करते हो तो आपका कंटेंट उनके पूरी ऑडियंस को दिखाया जाता है। ये रोमानी का काम है, स्टोरी बोर्डिंग का, जिससे चैनल का ट्रैफिक बढ़ जाता है। यूट्यूब की भाषा में इसको कोलैबोरेटिव फिल्टर, ये वायलिन वाला उसमें नहीं जच रहा है, वायलिन इसमें नहीं जच रहा, फिल्टरिंग बोलते हैं। नंबर 4, मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसल्ड। समय ने अपने शो, ये एकदम से कुछ ट्रैक चेंज हो गया एकदम से। कैन वी मेक दिस ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ? मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसल्ड। समय ने अपने शो के सारे एक्सप्लिसिट एंड कंट्रोवर्शियल कंटेंट को मेंबर्स ओनली कंटेंट में ऐड कर दिया है। ऑफेंसिव कंटेंट या डार्क ह्यूमर को पब्लिकली रिलीज करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिस इसमें ना एक कुछ कंटेंट को मेंबर्स ओनली कंटेंट में ऐड कर दिया है। यहाँ पर कुछ मेंबर्स ओनली कंटेंट का कुछ फनी कंटेंट हमारे को प्लग इन करना चाहिए, कुछ तो डालना ही चाहिए। ऑफेंसिव अर्पित बाला वाला कुछ डालना चाहिए। सिर्फ कंटेंट या डार्क ह्यूमर को पब्लिकली रिलीज करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से AIB एंड आशीष सोलंकी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी पहले काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ पे AIB का न्यूज डालना, आशीष सोलंकी बोलना कि यार मुझे डिलीट करना पड़ गया, कुशा कपिला का डालना, अश्नीर ग्रोवर का डालना। पर समय ने ये गलती नहीं करी। उन्होंने YouTube पर पेड मेंबरशिप्स लॉन्च कर दी, जिसमें 60, 600 और 2000 रुपए तक के प्लान्स आप खरीद सकते हैं। एंड अगर हम उनके 5 लाख मेंबर्स को 60 से भी मल्टीप्लाई करें एंड YouTube के 30% कमीशन को डिडक्ट भी करें, तब भी समय विल अर्न ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ पर मंथ। उन्होंने एक नया चैनल लॉन्च किया है फॉर लेटेंट क्लिप्स, जहां वो थोड़ा सा मेंबर्स ओनली कंटेंट फ्री में रिलीज करते हैं, जिससे नए लोगों को मेंबरशिप खरीदने का मन करे। जो इंसान पैसे खर्च कर डार्क कॉमेडी कंज्यूम कर रहा है, उसके ऑफेंड होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। ये मशीन वाला ऑफ मत किया करो, उसमें दिए ना मशीन टाइप है, द वीडियो इज नॉट टेकी। Number 5, distinct IP. We don't need a gap, to be honest. We don't need a gap. Let's start with number 5 directly. Number 5, distinct IP and brand identity. Or we can add some dark joke इधर. It's a good spot to add a dark joke gap में. ये पूरा सेल्फ अवेयर पॉइंट सिस्टम, एक डिस्टिंक्ट लोगो जो एपिसोड 1 के बाद बना था, द लोगो ट्रांस, इसमें ना एपिसोड 1 में we should have a split screen. इधर एपिसोड 1, इधर एपिसोड 2 एंड देन एपिसोड 1 में उनका नॉर्मल बोर्ड और एपिसोड 2 में एक्चुअल लोगो है। दैट लुक वेरी कूल। द लोगो ट्रांजिशंस, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इंडियाज गॉट लेटेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, जिससे समय खुद एक वैल्यूएबल IP बना पा रहे हैं। IP स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे रोमानी का एक स्लाइड आ जाएगा। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ आप ओन करते हो, एक ऐसा यूनिक ऑफरिंग जो दूसरों के लिए कॉपी करना बहुत टफ हो। कौन बनेगा करोड़पति या इंडियाज गॉट टैलेंट, दोनों ऐसे IPs है जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पे काफी सारी क्लिप्स आ सकती है, अलग अलग KBCs की, अलग अलग इंडियाज गॉट टैलेंट की। सिमिलरली YouTube पर अब इंडियाज गॉट लेटेंट भी एक बहुत सक्सेसफुल IP बन गया है। एंड ये मत समझना कि समय ने ये पहली बार ही ट्राई किया है। उन्हें YouTube पर सुप्रीम लीडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले एक और IP बनाया था, जिसका नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस IP पर समय ने ज्यादा लोग, ज्यादा बड़ा वेन्यू, ज्यादा खर्चा, सब कुछ ज्यादा किया था, बट वो तब भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना लेटेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने उस शो में इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2 साल में ना ये अभी भी बहुत सुपर हीरो टाइप म्यूजिक है सुस्मित, जबकि वी हैव टू मेक द म्यूजिक लाइक अ बिजनेस केस स्टडी। ये ना वॉर नहीं चल रहा है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अस अनरैवलिंग देयर बिजनेस। तो फनी भी नहीं होना चाहिए। जो फुल डिस्क्लोजर या AVTV टाइप के जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं ना, थोड़े से मतलब क्यूरियस, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग कि हम कुछ अनरैवल कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वैसा म्यूजिक चाहिए। कोई वॉर तो नहीं ना हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2 साल में US या UK के कॉमेडियंस इंडियाज गॉट लेटेंट का IP समय से खरीद के एक यूरोप्स गॉट लेटेंट या अमेरिकाज गॉट लेटेंट भी लॉन्च कर दे। बट अंश, हम तो ना कंटेंट बनाते हैं और ना ही कॉमेडी करते हैं, तो इन सब से हम क्या सीखे? समय की इस कहानी से मुझे क्या फायदा?
एक एक करके बताता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सिखाते हैं, आपके सबसे बढ़िया जोक तब लैंड। बट अंश, हम तो ना कंटेंट बनाते हैं और ना ही कॉमेडी करते हैं। ये भी बहुत ही हार्ड हिटिंग है, उसमें बहुत ही इंटेंस हो गया है। तो इन सब से हम क्या सीखे? समय की इस कहानी से मुझे क्या फायदा? एक एक करके बताता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सिखाते हैं, आपके सबसे बढ़िया जोक तब लैंड करते हैं जब इसमें ये लेडी का राग नहीं जच रहा है, बिकॉज मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बाद में आ सकता है। सामने बैठी ऑडियंस उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रही हो। ठीक उसी तरह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समय इफ वी कैन जस्ट रिमूव द वोकल्स ना, और सितार वितार चल रहा हो तो तब भी सही है, बट वोकल से क्या होता है, इट साउंड्स लाइक अ सेंटिमेंटल ट्रैक एंड दिस इज नॉट अ सेंटिमेंटल, इट्स नॉट एन इमोशनल पार्ट है ना। इतनी जल्दी इतने कामयाब हो जाएंगे। समय के काफी फैंस उनकी कामयाबी को एक पर्सनल विक्ट्री मानते हैं। मैं पर्सनली समय से कभी मिला नहीं हूँ, बट मेरे काफी दोस्तों ने उनसे बात करी है एंड सभी का एक कॉमन ओपिनियन है कि समय कैमरा पर जितने सैवेज और ऑफेंसिव है, वो ऑफ कैमरा उतने ही हम्बल है। मैं जानता हूँ कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। आई नो कि समय रैना की टीम, उनके फ्रेंड्स, उनके 5 साल का हसल, टाइमिंग, कनेक्शंस, हर चीज का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है। बट फिर भी हम उनकी कहानी से 5 जरूरी लाइफ लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, लर्न हाउ टू पिवट एंड इवॉल्व ऑन टाइम। प्रिंट इंजीनियरिंग के बाद समय ने पोएट्री, गिटार, इनफैक्ट एक स्टार्टअप क्रेजी बी में इंटर्नशिप करके एमबीए करने का भी प्लान बना लिया था। बट किस्मत बड़ी सियानी होती है। अगर आप समझदारी से ठीक लोगों के साथ जुड़कर लगे रहो तो आपको वो आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाबी दे देती है। समय ने पुणे से मुंबई शिफ्ट होकर अपने आप को एक बेटर ज्योग्राफी में रखा और 2 साल तक अपनी, हमारे को ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि बीच बीच में कुछ क्लिप्स डाले, इंटर्नशिप करके एमबीए करने का भी प्लान बना लिया था। यहाँ पे ना उनकी एक स्टोरी डालनी चाहिए जहाँ पे बोल रहा है कि यार मैं तो एमबीए का भी प्लान बना लिया था। लाइफ ऑफ समय रायना स्टोरी वाली में है, सागर शाह वाली में। बट किस्मत बड़ी सियानी होती है। अगर आप समझदारी से ठीक लोगों के साथ जुड़कर लगे रहो तो आपको वो आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाबी दे देती है। समय ने पुणे से मुंबई शिफ्ट होकर अपने आप को एक बेटर ज्योग्राफी में रखा और 2 साल तक अपनी स्टैंड अप स्किल्स पर काम किया। स्टैंड अप स्किल्स पे काम किया, उसके बाद उसका कोई ऐसा स्निपेट उठाओ जहाँ पे इसे कि मैं अभिषेक उपमन्यु और इन सब के लिए ओपनिंग करता था। दिस शुड बी 100% देयर। पर जब कोविड ने ऑफलाइन शोज बंद कर दिए तो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। कंप्लेंट करने की जगह उन्होंने घर पर बैठकर बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट करे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज किया। यहाँ पर भी लेट्स पुट अ पार्ट ऑफ हिज लाइव स्ट्रीम, खतरों के खिलाड़ी वाले का स्पूफ का ही वी शुड जस्ट ऐड समथिंग। उसमें भी उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले अपना बहुत मजाक उड़ाया। इसमें भी उनकी लाइव स्ट्रीम में देखो, इफ ही इज एवर मेड फन ऑफ हिमसेल्फ, कुछ भी लाइक कंटेंट अराउंड हिम मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ, अंकुर वारिको वाला कुछ भी। पहले चेस स्ट्रीमिंग करी और फिर 2022 में जब वो भी स्लो डाउन होने लगी तो उन्होंने एक बड़ी मार्केट, एक वाइडर टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए नए आईपीज पर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो 2024 में इंडियाज गॉट लेटेंट को लॉन्च कर पाए। डे 1 से समय ने एक अनअपोलोजेटिक ब्रांड क्रिएट किया। स्टेज पर वो ऐसी बातें कह देते हैं जो सब सोचते तो है बट डर के मारे कभी बोलते नहीं। यहाँ पे फिजिक्स वाला फॉर श्योर। इसलिए एज अ फाउंडर आपके लिए टाइम के साथ इवॉल्व करते रहना बहुत ही जरूरी है। इसमें मुझे ओवर एम्पावर कर रहा है सुस्मित। एंड डे 1 से एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए एक ब्रांड बनाना जरूरी है। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड द प्लेटफॉर्म यू आर सेलिंग ऑन। समय ने पहले 2 साल लाइव स्ट्रीम्स करके अपनी टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी एंड यूट्यूब एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझकर एक नया आईपी क्रिएट किया जिससे वो एक क्राउडेड मार्केट में स्टैंड आउट कर पाए। जोमैटो के बर्थडे पर स्विगी की शर्ट पहनने से समय को जोमैटो की भी टीम डिस्कस करेगी और स्विगी की टीम भी। इसमें जोमैटो का वो डालना है, रिएक्शन डालना है मुझे क्राउड का। अन अकेडमी के इवेंट पर खान सर ओपी या फिजिक्स वाला मेंशन करके उनके क्लाइंट और उनके क्लाइंट के कंपैरेटर्स सब समय का वीडियो शेयर करेंगे। इसमें खान सर ओपी डाल देना, पहले वाले में फिजिक्स वाला डाल देना, इसमें खान सर ओपी डाल देना। समय जानते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें शेयर करने में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट बोर्ड की भी पेड कोलैब में वो ये सब बोल देते हैं। इसमें उनका एंडिंग आएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझिए। और ये म्यूजिक ना उसमें तुम पहले भी डाल सकते हो, ये म्यूजिक अच्छा है जो पीछे चल रहा है, यू कैन रिपीट द म्यूजिक, इट्स कंप्लीटली ओके। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उस प्लेटफॉर्म, दिस इज द वाइब दैट आई वांटेड इन मोस्ट ऑफ द वो जो
एग्रेसिव एक्शन म्यूजिक है ना, उसको रिप्लेस करके इस तरीके का म्यूजिक चाहिए। प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स को स्टडी करें और उनके हिसाब से सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करें। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफलाइन मार्केट्स के लिए भी वैलिड है। लेसन नंबर 3, मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। समय ने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये तो समझ लिया कि अगर काम करो तो ऐसा करो जिसकी एग्जीक्यूशन, ये भी म्यूजिक बहुत बढ़िया है, इजी हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो एंड हर बार बड़ी पता नहीं राइट साइड से क्यों आ रहा है, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं सुनाई दे रहा ज्यादा, स्कोप ऑफ वैरायटी मैक्सिमम हो। लेटेंट के हर एपिसोड में नोबडी नोस की स्टेज पे कौन आने वाला है। हर एपिसोड में इसके अंदर वी शुड डू सम शो का ओपनिंग का सीन जहां पे ही इज इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, तो बहुत बढ़िया आएगा। हर एपिसोड में जजेस भी चेंज हो रहे हैं, तो इन एवरी एपिसोड यू हैव समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। वैसलीन पूरी दुनिया में पेट्रोलियम जेली बेचकर करोड़ों की सेल्स करती है। इसमें वैसलीन का अगर कोई छोटा सा ऐड है तो वो डाल दो, जस्ट 3-4 सेकंड का। बट असल में ये जेली तेल बनाने के प्रोसेस का एक साइड प्रोडक्ट है जो पहले वेस्ट माना जाता था। वैसलीन ने इसी वेस्ट को बेचकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर लिया है। कंट्रोवर्शियल या एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की जगह इसमें ना एक न्यूज का भी हम क्लिप डाल सकते हैं जहां पे वैसलीन के रिपोर्ट्स है, सेल्स रिपोर्ट्स है, वरना एक पीडीएफ दिखा सकते हैं उसमें लिखा हो उनकी प्रॉफिट्स फॉर दैट 1 ईयर। कंट्रोवर्शियल या एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की जगह समय ने इसे मेंबर्स ओनली कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया। इस स्ट्रैटेजी से ना सिर्फ उनका रिस्क कम हुआ बल्कि एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट हुई। लेसन नंबर 4, बी इंस्पायर्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ये लेसन मैंने निखिल कामत और बादशाह के WTF पॉडकास्ट से सीखा था। लेटेंट से पहले किल टोनी ऑलरेडी 8 साल से सक्सेसफुल था। समय ने किल टोनी से इंस्पिरेशन तो लिया पर उनको ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया। एंड ये मत समझना कि समय हमेशा से इतने, ठीक है, यहां तक पहले कंप्लीट करो। मेरे हिसाब से आगे तक का तो ऑडियो ऑलमोस्ट ठीक ही था। यू वर्क ऑन दिस सुस्मित एंड देन कल शाम को 6 बजे बैठ के सिंग करते हैं। Alright, so the next video is me explaining how I design the hook of a video, what is my process of finding the right clips and creating a sense of emotion. Let's watch. तो सबसे पहले ना मेरे को एक तो ये समझाना था कि how have I edited the first 1.5 minutes. So I'll set the context. We are on Saturday 4th of Jan 10 p.m. and we have to release this Samiraina video on Monday. And we had created some basic hook structure, some basic intro. अभी B-roll हमने complete कर लिया है, but जब मैंने intro देखा तो I realized that audio में बहुत सारे issues और वो impact नहीं आ रहा है. So I'll now tell you how exactly have I taken the same footage. जो footage तुम लोगों ने pick किया, पहली बात तो हमने ये पहले डिस्कस किया था कि कैसे एक फुटेज को पूरा माइन्यूटली देखना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा कि जब तुमने टाइम स्टैम्प्स बना लिए हो, जब तुमने एक लिस्ट बना लिया हो, तो कैसे ऑडियंस की आंखों के अंदर इमोशन डालना है, क्योंकि रिटेंशन इमोशन पे बेस्ड है। तो अभी मैं पहले ये प्ले करता हूँ जो तुम लोगों ने साथ बैठ के बनाया था। एंड बाय द वे, एक तो ये क्रिएटिव प्रोसेस को आइसोलेशन में किया करो, ग्रुप में मत किया करो। तो अगली बारी भी ओम विल मेक ऑल द टाइम स्टैम्प्स, देन ओम कैन टेल कि ये स्क्रिप्ट में ये आ सकता है, देन सुस्मित कैन डू द साउंड डिजाइन अलोन। बट 3 लोग साथ बैठ के मत किया करो, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्रिएटिव प्रोसेस हमेशा अकेले होता है। तो पहले मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। समय का एक स्टाइल है बात करने का, जिसे हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं ना। क्रेजी सा पागल सा लड़का है। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं कि समय को पॉडकास्ट बनाओ। ये है समय रैना। वो हर बात कैसे फनी बोल सकता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, उससे सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को सालों बाद OTTs या बॉलीवुड से मिलती है, वही दौलत समय ने इतनी जल्दी खुद से कैसे बना ली। एक इंसान जिसको स्कूल तक जाने से डर लगता था, horrible mentally draining years is to fucking get afraid of going to school, जिसको बचपन से सबने बुली किया, I was the easiest punching bag in the class, वो आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से कैसे जुड़ गया। ठीक है। Now the problems here is that number one, of course this is a sound design problem, तो बाद में फिक्स हो जाता, बट पॉडकास्ट का साउंड बहुत क्लियर है, मेरा साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है, एंड द म्यूजिक इज नॉट गिविंग मी इनफ पीक्स एंड ट्रफ्स। ट्रफ होता है नीचे, पीक होता है ऊपर, एंड इन व्हेन यू वांट हाई रिटेंशन, राइट, सो यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर ऐसे सर्कुलेटिंग, लाइक आपको पीक लेके जाना है, ट्रफ लेके जाना है, पीक लेके जाना है, ट्रफ लेके जाना है। एंड देन हुक क्या होता है, हुक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, हुक के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एंड हुक के अंदर हमारे को सामने वाले को ये कन्विंस करना होता है दैट द स्टेक्स आर हाई इनफ। ठीक है। नाउ इफ आई वर टू एडिट द सेम थिंग, तो व्हाट आई थॉट, सबसे पहले तो मैंने म्यूजिक चेंज करा, ठीक है,
एंड व्हाट आई डिड वाज, अभी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप एक फोटो भेजा होगा, मैं फिर से बैठा, मैंने सारे इंटरव्यू क्लिप्स में सेलिब्रिटी का नाम लिखा और सेलिब्रिटी के नाम के राइट साइड पे उसने क्या डायलॉग बोला है वो लिखा। उसके बाद मैं YouTube शॉर्ट्स पे गया, मैंने वहां से भी देखा कि शॉर्ट्स में, क्योंकि जो चीज शॉर्ट्स तक पहुंच गई मतलब वो 30 सेकंड का कुछ वायरल टाइप कंटेंट है, हाई स्टेक्स कंटेंट है। शॉर्ट्स पर गया और मैंने ये सारे सीन देखे और फिर मैंने उन सीन्स को ट्रेस करके मैं मेन यूट्यूब वीडियो पे गया, उसको मैंने एचडी में डाउनलोड करा। एंड देन जब मेरे पास सेलिब्रिटीज का लिस्ट आया और फिर मेरे पास उनके कोट्स का लिस्ट आया, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने आप से पूछा कि कौन से सेलिब्रिटी के स्टेक्स सबसे हाई है। तो जैसे तुम लोगों ने बोला कि रोहित शेट्टी है, ठीक है, अब रोहित शेट्टी यहाँ पे फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ओपनिंग फ्रेम ऑफ द हुक? समय का एक स्टाइल है बात करने का, जैसे हम डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल है बात करने का, which is the second sentence that you picked। उर्फी जावेद कह रही क्रेजी सा पागल सा लड़का है। क्रेजी सा पागल सा लड़का। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम, ये लोग तुम लोगों ने सिलेक्ट किया। कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं कि समय को पॉडकास्ट बनाओ। और बाय द वे एक तो उसमें यू हैव टू लर्न, ऑडेसिटी में करो या उसमें करो कि कैसे इसको जब तुम श्रिंक कर रहे हो तो ये आवाज खराब ना हो, राइट। ठीक है। तो ऐसे अब जैसे तुमने पकड़ा, तो भारती के हस्बैंड को बाय द वे बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब नाउ यू सी हाउ आई हैव क्रिएटेड द सेम हुक, ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगा, बिकॉज जस्ट बाय ऑडियो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या वाइब दे रहा हूँ। जहां जहां पे गैप्स होगा, इमेजिन वहां पे दानिश का वो 3D सेट है। नाउ लिसन व्हाट डायलॉग्स हैव आई चोजन टू मेक श्योर कि इमोशन आए, कॉन्फ्लिक्ट आए। कॉन्फ्लिक्ट इज द की, ठीक है। एक नया शो है यूट्यूब पर, एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वॉचिंग दैट शो इंक्लूडिंग अडल्ट्स, छुप छुप के। ये है समय रैना, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। उससे सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया? भाई जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, आई डोंट नो समय कैसे करता है भाई लेजेंड आदमी है वो इसका। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को सालों बाद ओटीटीज या बॉलीवुड से मिलती है, वही दौलत समय ने इतनी जल्दी खुद से कैसे बना ली? अजी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा ही है वो, ये बच्चा है, क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है? हाँ। एक इंसान जिसको स्कूल तक जाने से डर लगता था, So 7th, 8th, 9th, 10th horrible mentally draining years. जिसको बचपन से सबने बुली किया। I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा दिन लगा, क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन था एकदम। वो आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से कैसे जुड़ गया? अनसेंसर्ड अनहिंज्ड रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे, ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। देखते हैं वो होता है कि नहीं। नाइस, अमेजिंग। अब मैं इसका ब्रेकडाउन बताता हूँ, समझ आया क्या हुआ? सेम क्लिप्स है। पहली बात इस चीज पे ध्यान दो, मैंने सेम क्लिप्स उठाई है, मैंने सेम डायलॉग उठाया है, बट अब नोटिस करना कि मैं कौन सी चीज को पहले हाईलाइट कर रहा हूँ और कैसे इमोशन को पीक कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो पर। रणवीर का फेस और अजय देवगन का फेस सबसे हाई स्टेक्स है, ऑल द गेस्ट दैट वी हैव चोजन, प्लस हाई स्टेक सेलिब्रिटी, एंड ही इज सेइंग समथिंग व्हिच इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस दैट रणवीर सेज, एक नया शो है यूट्यूब पर, एक नया शो है यूट्यूब पर। अब मेरे अगर फादर देख रहे हैं, मेरी मदर देख रही है, उनको अगर नहीं पता समय रैना कौन है, तो रणवीर उनको बोल रहा है एक नया शो है यूट्यूब पर। और जब वायलन पर यहाँ पे लेटेंट का कमरा, अंश मेहरा प्रेजेंट्स, द फर्स्ट टाइटल शॉट, खाली कमरा, कैमरा पैन इन हो रहा है। एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वॉचिंग दैट शो इंक्लूडिंग अडल्ट्स, छुप छुप के। एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वॉचिंग दैट शो छुप छुप के। That is a curious statement, very curious statement. तो बेसिकली, और ये सेम क्लिप है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट ओम यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल वीडियो एंड आस्क योरसेल्फ कि भाई ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हाई स्टेक्स है, ठीक है। तो अब ये आया, अब फिर से जब वायलन आएगा तो फिर से कमरा आएगा, थोड़ा और जूम इन हो जाएगा, हम किताब के पास आएंगे और समय के अलग अलग वीडियोस आएंगे। यहाँ पे मेरा मन है कि मैं एक वॉइस ओवर एक और डालूं, तो जब यहाँ पर एक और वॉइस ओवर मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे सजेशन लेना था कि कोई ऐसा वॉइस ओवर बताओ जो उसकी बिगिनिंग के लाइफ का हो। कोई ऐसा अगर है सजेशन अपने माइंड में रखना।
वो उसकी जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम था उसमें मतलब उसमें उसको बलराज बोलते हैं कि बनेंगे, मतलब पहला लाइव स्ट्रीम था तो बोलते हैं कि तन्मय, मतलब तुम तन्मय से बड़ा यूट्यूबर बनेंगे। बोलते नहीं, तन्मय तो बहुत बड़ा है, तन्मय नहीं, हम कुछ बनेंगे ना अपना खुद का समय। हाँ, तो वो कौन से में है? लाइव स्ट्रीम में वो मैंने बलराज वाली लाइव स्ट्रीम टाइम स्टैम्प दिया है। हाँ, ठीक है, टाइम तो स्टैम्प ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब ये टक 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 टक, तो उसमें समय की पुरानी पिक्चर्स आ रही है जो इंस्टाग्राम से ओम ने ढूंढी है, राइट। ठीक है। ये है समय राय। अब आएगा चेहरा समय रायना का। ये है समय रायना। ये है समय रायना, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जिसमें बी-रोल आ रहा है, एक नॉर्मल उसकी पुरानी फोटो, जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल, अलग अलग सीन्स आ रहे कर रहा था। उससे सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया? भाई जो समय रायना ने किया है पिछले 1 महीने में, आई डोंट नो समय कैसे करता है भाई लेजेंड आदमी है। नोटिस करो, एवरी सिंगल वीडियो का ऑडियो इज क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट की क्लिप्स उठाई है। इट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को, अब यहाँ पे मैं पेज के पलटाने वाला सीन एक दानिश से मंगाऊंगा। वो धड़ 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 करके बुक खुल रही है। आदमी है वो इसका। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियंस को सालों बाद ओटीटीज या बॉलीवुड से मिलती है, वही दौलत समय ने इतनी जल्दी खुद से कैसे बना ली? अजी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा ही है। नोटिस कर रहे हो मैंने क्या किया? सबसे पहले में बोल रहा है जो उसने कर दिया है वो ये है। आशीष अंशलानी कह रहा है कि भाई समय तो लेजेंड है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी अचीवमेंट जो लोगों को सालों लगती है, इसने कितनी जल्दी कर दिया है। फिर भारती, जो लोग तुम लोगों ने जो क्लिप सिलेक्ट किया उसमें वो कह रहा है कि हैं ऐसे करके, वो कह रहा है, और इसमें भारती इज द बिगर सेलिब्रिटी एंड नॉट द हस्बैंड। या एंड महीप सर भी दिख रहे हैं, तो भारती कह रही है बट सर वो तो बच्चा है। बच्चा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा ही है वो। ये बच्चा है, क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। देख रहे हो, एक इंसान जिसको स्कूल तक जाने से डर लगता था। So 7th, 8th, 9th, 10th, horrible, mentally draining year. अब नोटिस करो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो तुमने क्लिप चूज करा है वो उसमें क्या करा, तुमने कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया है कि क्या मतलब क्या है खराब। शो व्हाट यू हैव लगता था। Horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school. ठीक है, एक और पहले भी है, ठीक है। Punching bag in the अब ये सेम क्लिप, horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school. तो गेटिंग अफ्रेड ऑफ द स्कूल का मुझे रिपीट करने का नीड ही नहीं है, इससे डर लगता था। So 7th, 8th, 9th, 10th, horrible, mentally draining years. समझे? राइट। मैंने को डिलीट कर दिया, इट हैज बिकम मोर टाइट, और वो कह रहा है 7th, 8th, 9th, 10th। भाई एवरी सिंगल ईयर ही वाज बुलीड। तो ये है द आर्ट ऑफ एडिटिंग। दिस इज कॉल्ड कि भाई व्हाट विल ट्रिगर द राइट इमोशन। इट इज नॉट कि भाई उसने कुछ बोला टाइम स्टैम्प पे बस ऐसे डाल दे। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि भाई सामने वाले की आंखों में पीक इमोशन, पीक रिलेटेबिलिटी कैसे आएगा। अब मैं बोलता हूं, जिसको बचपन से सबने बुली किया, I used to cry in the ये जो स्टोरी है, आई यूज्ड टू क्राई इन द बस, और मैं मम्मी के सामने जाता था, अपने आंसू पोंछता था और झूठ बोलता था कि मैं खुश हूं। दिस इज सच अ हार्ड हिटिंग स्टोरी। प्रखर का तो मुंह खुला रह गया था। अब इसमें ज्यादा इम्पैक्ट है या इसमें? I was the easiest punching bag in the class. वो आज ये कैजुअल था। हाँ, तो यू हैव टू कीप चेकिंग कि मैं पीक इमोशन दिन था एकदम। वो आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज से कैसे जुड़ गया। अनसेंसर्ड, अनहिंज्ड, रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे, ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। देखते हैं वो होता है कि नहीं। ये जो अभी आज उसने स्टोरी डाली है वो भी डाल दिया। हाँ, तो ये वापस मैंने रिपीट किया है एंड पे, लेकिन हाँ, ठीक है। उसमें हमने विजन भी डाल दिया है। ठीक है, ये जब मैं बोलूंगा सेलिब्रिटीज के साथ, इसमें जो आज रफ्तार ने म्यूजिक वीडियो लॉन्च करा है वो डाल देंगे। तो समय राणा बोलेगा कि कैसे कर लिया इसने, अभी तो रिलीज करा है मैंने वीडियो, कैसे बना दिया इसने इतना इम्पैक्टफुल। और ये सब कुछ 1 मिनट 30 सेकेंड्स पे, तो अब पक्का पीक हो जाएगा क्यूरियोसिटी। राइट। ऑडियंस बोलेगा कि अब तो मुझे देखना ही देखना है कि ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुंचा है। जो बच्चा रात बस में रोता था, अपने आंसू पोंछता था, वो आज म्यूजिक वीडियो में आ गया है। अब वो कह रहा है मैं ओटीटी ऐप बनाऊंगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब वो ओटीटी ऐप बना रहा है। तो हैव यू नोटिस्ड हाउ आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर नैरेटिव? ट्रैजेक्टरी बनी है पूरी। हाँ, एंड राइट म्यूजिक अप डाउन हो रहा है। मैंने 2 अलग अलग ट्रैक्स यूज करे हैं। तो जो पुराना म्यूजिक था वो इट वाज वेरी वेरी, इट लैक्ड दैट कैरेक्टर। तो मैं एक बार वो सुनाता हूँ।
This is more like a concluding music, by the way. राइट. यहाँ तक म्यूजिक सिनेमैटिक था, यहाँ से फिर सस्ता हो गया है। जो डबस्टेप अपस्टेप शुरू हो गया ना इसमें, डबस्टेप से ऑटोमेटिकली सिनेमैटिकनेस कम हो जाती है। राइट. बट जो ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वायलिन होता है, सितार होता है, उससे आता है एक रॉनेस, एक सिनेमैटिक, एक कैरेक्टर आता है आवाज के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यू सेंड मी द फुल ऑडियो सुस्मित, पूरा भेज दिया ना? भेज दिया मैंने. ठीक है, अब मैं, पुष्कर और आदित्य बैठ के ये सारा अभी बी रोल सारा सॉर्ट करेंगे, ए रोल के ऊपर बी रोल। ठीक है, मैं अभी पूरा ऑडियो सुनूंगा बैठ के, उसमें और फीडबैक अगर हमें होगा तो देख लेना। यू हैव सेंट अस द फुल प्रीमियर प्रो फाइल ना? फुल प्रीमियर 20 GB का फाइल है वो. हाँ, वो किधर है? यहाँ पर है। हाँ. ठीक है, इसको हम iMac पे अभी डाल के इस पे अब काम करेंगे। तो अब मैं टारगेट बता रहा हूँ हम सबका, हमका गोल ये है कि हम एटलीस्ट 7 या 8 मिनट तक आज पूरा वीडियो खत्म कर देंगे। और मेरा ये भी मन है कि मैं स्क्रिप्ट को फिर से सुनूंगा और देखूंगा अगर कुछ उसमें ट्रिम हो सकता है या नहीं। ठीक है, जिससे हम 20 मिनट की चीज को 15 मिनट कर देंगे तो और एफर्ट कम हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो पार्ट ट्रिम हो सकता है, लाइक पूरा आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि ये एक शो है जहाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं वो बट वो मेरे मम्मी पापा को उस ऑडियंस को नहीं समझ आएगा। देखते हैं अगर उसको और ट्रिम कर सकते हैं। नहीं वो मतलब बहुत लंबा चला गया। हाँ देखते हैं, अगर एडिट करना हो तो एडिट कर देंगे। आई एम ओपन टू इट। The next video is me explaining why did the Samir Raina video did so well. This video is extremely important for those who are trying to open up their own YouTube channels, because this insight deconstruction taught us a lot about the YouTube algorithm. And all of these things will help you understand the back end of why a video works. And folks, I'm telling you, you will grow 10 times faster in your life if you pause and reflect and understand why something is working and why something is not working. And in most cases, you will never be able to figure out all the reasons that made something successful and all the reasons that made something a failure. But at least you get closer to it. And once you do this again and again, once you do this for like 20-30 videos, you'll have a laundry list of things that you should do to improve your chances of winning, and you'll have a laundry list of things that you should not do to sort of not lose the game. So please understand how I'm going into the data, getting into the trenches. As an editor, you need to be comfortable with using data to take informed decisions. So let's watch a good insight of how exactly things have changed. And I thought that we should take some time to figure out what have we done right and what have we done wrong. पुष्कर, मैं और आदित्य तो 2 दिन से इसी चीज़ का लिस्ट बना रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. But I think now that everybody is here on one single call, I'll just quickly explain कि why do we think this worked out, what were some common mistakes, and what can we learn from it. So I'll go to manage videos. ठीक है. So by the way, we are at 118k views. Watch time is 10,000 hours. And we've got 2,000 subscribers from 7 PM kal. Now, if I were to go to the traffic sources, this is where things become very interesting. 91.8% of our views have come from YouTube recommendations. मतलब हम YouTube की गुड बुक्स में आ गए हैं. YouTube अब लिटरली हमारे वीडियो को होम पेज पे दिखा रहा है लोगों के, फिगरिंग आउट कि कौन इसमें रेलेवेंट होगा. अब ये क्यों हुआ? Because of multiple reasons. If I were to go to reach, यहाँ पे you'll notice that we got 1.3 million impressions. ठीक है, impression मतलब कि YouTube ने इतने लोगों को ये thumbnail दिखाया, जिसमें से 67% people were from browse. ठीक है, तो 1.3 million लोगों ने impressions देखे, 6.7% click through rate आया, उसके बेसिस पे 86.5k आया. अभी ये चल रहा है और 5 मिनट 12 सेकेंड का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया. ठीक है, एक्सटर्नल साइट्स और ऐप्स की अगर बात करें तो 35% केम फ्रॉम इंस्टाग्राम, दैट इज ऑब्वियस. फिर आया ओपन एन ऐप और इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है. और फिर व्हाट्सएप से आया, बिकॉज मैं खुद भी व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों को वीडियो भेजा है, जीरोधा के भी लोगों को भेजा है. नाउ एक चीज़ ये हमारे साथ अच्छी हुई कि अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट is now being uploaded in the same time. Now this is the most important part. आप लोगों ने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग हमारा वीडियो तो देख लिया है ना. तो हुआ क्या है कि कल कैरी ने एक वीडियो बनाया है
मिस्टर बीस्ट का, जिसमें अपेरेंटली कहीं पर समय है या कुछ समय का मेंशन हुआ है, एंड क्योंकि ये वीडियो कल ही रिलीज हुआ है तो इसके रेकमेंडेड सेक्शन में हम आए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो प्रखर के प्रवचन को हमने मेंशन करा है तो वहां से हमारे पास आया है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री का आई डोंट नो, सुनील ग्रोवर का आई डोंट नो, फिर रफ्तार एंड बादशाह की जो म्यूजिक वीडियो है उसमें भी हमारा रेकमेंड हुआ है। तो व्हाट इज द लेसन हियर? काफी लोग बोलते हैं कि अगर आप सेम टॉपिक पे काफी सारे वीडियोस बनाओ सो मे बी योर वीडियो माइट गेट लॉस्ट, बट इन दिस केस बिकॉज वी आर इन द वेव, इन द ओशन, if other people are making a video on a similar topic and if that video is ending, then our video will be the next video in the queue if the topic is trending. So when we talk about Coldplay, the fact that 18th Jan को Coldplay आने वाला है, a lot of people will be sharing their content about Coldplay on 18th Jan, and I want us to be on the right side in the recommended section. ठीक है, तो एक तो होता है कि सब्सक्राइबर से कंटेंट आ रहा है, दूसरा होता है राइट के सजेशन से आ रहा है, और तीसरा होता है कि यूट्यूब अपने आप को होम पे दिखा रहा है। अब वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा वॉच टाइम टेरिफिक है, तो वॉच टाइम हमारा 5 मिनट 5 सेकेंड्स है, और वो भी क्यों हुआ है आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो का एडिट एज वेल। तो ये लेसन समझना बहुत ज़रूरी है पूरी टीम के लिए कि कैसे रिटेंशन को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो लोग रिमोट है, आई विल जस्ट सेट सम कॉन्टेक्स्ट। हम थर्सडे बैठे हैं, मैं, पुष्कर, सुस्मित, ओम, आदित्य, हम सब बैठे हैं, दानिश, हम लिटरली बैठ के हमने पहले वीडियो बनाया था 24 मिनट का, 24-25 मिनट का वीडियो बनाया। फिर मैं रात को बैठा हूँ सैटरडे, मैंने ऐसे खटाई करी है उस वीडियो की, छट 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 छट, तो मैंने वो 25 मिनट के वीडियो को 15 मिनट कर दिया। आई एडिटेड 10 मिनट्स because I kept asking myself that is there any sentence that can be removed, like what is the core essence। तो जो कोर एसेंस वाला पार्ट था 25 मिनट के कंटेंट का, वो 15 मिनट तक आ गया। जो कोर एसेंस था, मतलब वो नॉन नेगोशिएबल था, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता था कोर एसेंस। बट देन आई एम लकी दैट ओम एंड सुस्मित ने मुझे सही टाइम पे एडवाइस दे दिया कि इट शुड नॉट बी एन एजुकेशनल वीडियो, इट हैज टू बी एन इंफोटेनमेंट वीडियो वेयर द एंटरटेनमेंट पोर्शन हैज टू बी बैलेंस्ड विद द एजुकेशन। सो बीच बीच में हमने शो के स्निपेट्स डाले, एंड इफ यू वर टू सी काफ़ी सारा मोनोटनी ब्रेक होता है, बिकॉज पहले मैं बोलता हूँ फिर बी रोल आता है, फिर मैं बोलता हूँ फिर बी रोल आता है, ठीक है। एंड देन इफ यू वर टू नोटिस द रेंडर, मैं और भी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो मैंने स्क्रिप्टिंग के टाइम पे भी मैंने बहुत केयरफुली इस बारी लॉक करके रखी थी। इसमें नहीं है क्या वो वीडियो? एक तो ठीक है, कोई नहीं, आई जस्ट कम टू द मेन वीडियो इन अ वाइल। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आते हैं थंबनेल पे। थंबनेल के लिए वी हैव बीन वर्किंग विद आंचल, सो शी सेंड्स मी अ बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आई चूज द राइट कॉन्सेप्ट, वी हैव बीन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस फॉर अ वाइल, एंड देन in the thumbnail itself you have the main hero character, you have India's Got Latent, and then you have a bunch of clean pictures in the background, you have the word uncensored on his t-shirt. Uncensored as a word itself gets a lot of attention because people want uncensored content. YouTube के title में the first word is Samir Raina because Samir Raina as a word will get more impressions right now. And then you write the uncensored comedy king, the word uncensored has to come पहले, the king of uncensored comedy नहीं, the uncensored comedy king, because uncensored as a word gets more CTR. So Samir Raina is the key factor for high impressions, but uncensored is the key factor for CTR. ये डिफरेंस समझ आ रहा है? अनसेंसर्ड से इंप्रेशन नहीं बढ़ा है। You have Samir Raina which boosted the impression, and then the thumbnail and the word uncensored increased the CTR. Now in the description I've written a small description जो मैंने ChatGPT से फर्स्ट ड्राफ्ट लिया और फर्स्ट ड्राफ्ट को अपने हिसाब से एडिट किया। ओम, ये हमारे को ना डिफॉल्ट डालना पड़ेगा। होस्टेड बाय अंश मेहरा, फाउंडर एंड सीईओ एट द कटिंग एज स्कूल, अंश मेहरा का इंस्टाग्राम। स्पेशल थैंक्स टू दीज 2 यूट्यूबर्स क्योंकि मैंने इन दोनों से काफ़ी कुछ सीखा था व्हेन दे वर मेकिंग द समीर रायना का वीडियो। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टाइम स्टैम्प बिजनेस एक्वायरी, एंड देन जो यूट्यूब टैग्स थे वो भी मैंने नीचे डाले थे। आई एम 100% श्योर दैट इंप्रेशन का काउंट इससे बढ़ता है 110%। इफ यू लिस्ट आउट द क्वेश्चंस एंड टैग्स इन द डिस्क्रिप्शन, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। उसको प्लेलिस्ट में डाला, एक नया प्लेलिस्ट बनाया कंटेंट क्रिएशन डॉक्यूमेंट्रीज, और फिर यहाँ पर टैग्स डाले,
समय रैना के ऊपर, चेस के ऊपर, लेटेंट के ऊपर, एंड दैट इज ऑल्सो, दिस इज अस टॉकिंग अबाउट द मेटा डेटा. अब मैं खोलता हूँ एक नया शो है. ठीक है. नाउ इफ आई वर टू शो यू द टाइम स्टैम्प, इंट्रो फिनिशेस एट 2 minutes. ठीक है, जिसमें हमने हाइप क्रिएट करा है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हुआ है, इसका ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हम बना चुके हैं लूम पर, वो मैं डाल दूंगा. बट गोल ये था कि वी डू नॉट स्टार्ट विद समय रैना's फेस, वी स्टार्ट विद रणवीर्स फेस एंड अजय देवगन्स फेस, बिकॉज इन लोगों का स्टेटस सिंबल इज द हाइएस्ट आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट वी स्कैन. बेसिकली मैंने एक लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज कागज पे बनाए थे, आई डोंट हैव दैट पेपर, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है. एंड देन आई रैंक्ड कि किस इंसान का सोशल स्टैंडिंग सबसे हाई है इन सब में, एंड रणवीर एंड अजय देवगन ऑब्वियसली वर ऑन द वेरी टॉप. And then I've chosen a question that introduces the show. I'm not even assuming that people will even know कि समय रैना कौन है या इंडियाज गॉट लेटेंट कौन है. तो रणवीर बोलता है कि एक ऐसा शो आ गया है जिसको लोग छुप छुप के देखते हैं. एंड देन एट द फर्स्ट सेकंड इटसेल्फ, बाय द वे, लाइक अगर मैं इसका प्रीमियर प्रो का दिखाऊंगा, पहले ही सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में रणवीर दिख गया है, अजय देवगन दिख गए हैं, अंश मेहरा क्रिएशंस दिख गया है, इंडियाज गॉट लेटेंट दिख गया है. फर्स्ट 3 seconds आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 3 seconds में हमने बोल दिया कि भाई इस वीडियो में म्यूजिक बढ़िया है, 3 लोगों के स्टेक्स बढ़िया है, एंड देन ही सेइंग कि लोग इसको छुप छुप के देखते हैं तो क्यूरियोसिटी पीक हो जाता है. ठीक है, तो फिर आपका सिनेमैटिक चल रहा है, आपके अलग अलग समय रैना के वीडियोस आ रहे हैं, पिक्चर चेंज हो रहा है, मतलब विद इन 20 to 25 seconds द सीन्स आर चेंजिंग रैपिडली. इट्स इंसेनली फास्ट. उसके बाद द इंटायर वीडियो स्प्लिट इनटू चैप्टर्स. ठीक है, यहां से अगर हम शुरू करते हैं 2 minutes 42 एंड 4 minutes 20, मतलब 2 मिनट का चैप्टर. ये 2 मिनट का, ये 2.5 मिनट का, फिर क्रैकिंग द एल्गोरिथम इतना, और फिर इतना. एवरी वीडियो स्प्लिट इनटू चैप्टर्स. चैप्टर्स से क्या होता है, अ बिग वीडियो स्प्लिट इनटू स्मॉलर वीडियोस. तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है. जब आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है तो व्यूअर का मन करता है कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस और कर लूँ, विच इज कॉल्ड द ज़िगार्निक इफेक्ट. और इस इफेक्ट के बारे में मैंने रेगुलरली बताया हुआ है कि अगर आपको जिम जाने का मन नहीं करता है तो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, मतलब बस जूते पहन लो. अगर जूते पहनने के बाद भी आपका जिम जाने का मन ना करे तो यू डोंट गो टू द जिम. बट दिस इज अ वेरी पॉपुलर ट्रिक दैट इज यूज्ड बाय पर्सनल ट्रेनर्स. तो अगर आप फर्स्ट स्टेप उनको प्रोग्रेस का दिखा दो कि भाई चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया और आप चैप्टर 2 पे आ गए हो, तो उनका मन करेगा आगे बढ़ने का, वरना द वीडियो लुक्स वेरी वेरी हाई. एंड साउंड डिजाइन की बात की जाए तो सुस्मित और मैंने एक एक सेगमेंट में एवरी 30-40 सेकेंड द म्यूजिक पीक्स एंड ड्रॉप्स. तो एक सेंस ऑफ एक पेंडुलम रहता है ऑफ मोमेंटम. और हमने स्टेमिंग यूज करा है. दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर एवरीबडी एल्स, बट स्टेमिंग क्या होती है कि एक म्यूजिक में 4 अलग अलग लेयर्स होती है. तो हम जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो 4 में से सिर्फ 2 चल रही है. जब बी रोल आ रहा है तो पहले 3 का बिल्डअप हो गया, फिर 4 का बिल्डअप हो गया, तो म्यूजिक मैक्सिमम नॉइस पर आता है. तो दैट यू विल बी एबल टू हियर. जब मैं लूम भी अपलोड करूंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड इट. नाउ सम इंपॉर्टेंट लेसन जो हम एडिटर्स के लिए था और कंटेंट डेवलपर्स के लिए था. कंटेंट डेवलपर्स नीड टू मेक श्योर दैट जब भी वो रिसर्च कर रहे हैं, वट एवर दैट दे आर एडिंग, उनको प्रॉपरली हाइपर लिंक करना है टू देयर सोर्स, जहां से ये वीडियो का स्निपेट है, जहां से इंटरव्यू का स्निपेट है. वट एवर वीडियोज दैट दे फाइंड, they have to neatly put a hyperlink on their document, क्योंकि हमारा इस बारी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था to figure out the B-rolls. जैसे ही कॉन्सेप्ट लॉक हो जाता है, दानिश हो गए, रोमानी हो गए, दीक्षिता हो गए, you folks need to do the conceptualization as soon as we start the topic कि ऐसा 3D मॉडल हो सकता है, ऐसा स्टोरी बोर्डिंग हो सकता है. जब स्क्रिप्ट आ जाए तो और भी तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड बाय द वे, जो इसका स्टोरी बोर्ड है, रोमानी एंड दीक्षिता, यू शुड सी हाउ क्लीन इट इज, हाउ मिनिमल इट इज. I could not use even a single slide. एक भी स्लाइड मैं यूज नहीं कर पाया जो स्टोरी बोर्ड की बनी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें पीछे वो ग्रंजी का टेक्सचर और उसमें रैंडम बार ग्राफ बने हुए थे. मतलब इट वाज जस्ट सो आउट ऑफ द प्लेस. लाल लाल उसमें सब कुछ बना हुआ था. ऐसा लग रहा था कि मैं किसी का मर्डर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ. लिटरली इट फेल्ट लाइक इट वाज सम मर्डर रिपोर्ट के पेजेस. तो प्लीज स्पेंड टाइम गोइंग ऑन Pinterest. You both have to significantly improve your aesthetics. You spend some time on Pinterest and there's like infinite ideas. Like for example, if I were to just open this thing right here, this is such a simple idea कि तुमने ग्राउंड को टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके you have used
the negative spacing to show a number, and then बीच में you have their images, और ये जो images है उसमें everything is black and white apart from their skin, right, and apart from the red color. So all of these things, they add up. So you have to spend a lot of time creating these mood boards. You have to ask yourself, how do I take inspiration from right things? I see you folks just following some patterns जो मैंने create कर दिए हैं, and you just keep following that. But look at the kind of content and inspiration you have at your disposal. And you have to make, see, if you folks think about it, 30 दिन में हम 4 वीडियोस बना रहे हैं प्लेबुक पे, 4 वीडियोस, सिर्फ 4 वीडियोस. तो अगर वो भी नहीं हम ठीक से कर पा रहे हैं तो इट मेक्स नो सेंस. मतलब देन देयर इज अ हाई इशू, प्रोबेबिलिटी का कुछ, एफिशिएंसी का कुछ इशू बैठ रहा है. तो दैट यू हैव टू फिक्स. स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट कंटेंट, consume as much as you can, and see, the honest truth is you have to do this all day long, otherwise you will not grow. So you ask yourself कि मैं सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक कैसे अपने टाइम को स्पेंड कर रही हूँ. am I putting a lot of focus? Am I keeping my phone away? And this is for everybody in the call. Keep your phones away. Shut everything around you. Like in the past 3 days मैं, पुष्कर और आदित्य ने सब कुछ बंद कर दिया था. लाइक वी वर जस्ट ईटिंग एंड वर्किंग एंड डूइंग पुशअप्स, एंड इसका ये लूप में चल रहा था. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग ऑन टाइम, यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर टेकिंग योर मल्टीविटामिन्स या व्हाटएवर यू नीड टू कीप हाई एनर्जी इन योर बॉडी, यू आर एक्सरसाइजिंग एवरी डे, एंड देन यू आर जस्ट वर्किंग, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन. Now, if you want to become the best. If you do not want to become the best, and if you want to stay basic, then that's completely on you. Now the fun part here is, the irony here is that इसमें मैं 5 lessons बताता हूँ, ठीक है. And when I was editing the video, I was just, जब मैं ये script भी लिख रहा था, I was like, oh, this is something that we have to do. To remind everybody, the first lesson of this video was to have maximum TAM, ठीक है. By choosing Samir Raina as a topic, we did that, ठीक है. What was lesson number 2? Understand your customer and the platform you're selling on. We understood that people want humor and not just gyan. We understood that people want to know my views. We understood how YouTube algorithms work in general. कि retention क्या है, CTR क्या है. So we tried to do that. ठीक है. Similarly, if I were to go to this YouTube का part 3, this lesson number 3, it was around maximizing your returns. ये हमने अभी तक नहीं करा है, but अगर हम इसके short form बनाते हैं और इसके शॉर्ट फॉर्म यूट्यूब पर डालते हैं तो पक्का वो शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा. अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ओम एंड आदित्य एंड पुष्कर. तुम लोगों को जो भी लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में ये बन सकता है वो तुम लोग डाल दो. बट आज आदित्य और पुष्कर तुम छुट्टी पे रहो. मैं वैसे आ रहा हूँ किरण विहार, क्योंकि हमें इंग्लिश वाली वीडियो पे काम करना है, बट आज छुट्टी लो. बट दिस इज हाउ यू मैक्सिमाइज एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू. तो इसको हम शॉर्ट्स में बहुत से निकाल सकते हैं. Lesson number 4, be inspired but not influenced. I took inspiration from Netflix for the book wala concept, but we did not blindly copy them. I took inspiration from Ritik Melawat and Siddhant Chopra, but I did not blindly copy them. ठीक है? We literally did the same. And then of course, in the end, you keep showing up. Like, I have been making videos for the past 1.5, 2 years. It has never happened that we have received 100K in a single night. But when I was editing this video, I don't know if it is there on the loom, I kept telling Pushkar and Aditya that ये video चलेगा ही चलेगा. Because even I knew that ये जो मैं 5 lessons Samir Raina की life से मैंने निकाले हैं, I have implemented those. Now, how do you use these 5 lessons for yourself? As an individual contributor, you just have to keep showing up. Abhi, see, my job is to literally tell you what is going wrong in your work. ठीक है? You do not expect any soft feedback from me. As a CEO, it is my job to tell you when are you doing shitty work and when are you doing good work. So if I'm telling you that your work is really, really bad, you have to ask yourself that why is it really, really bad? What are the specific components of my work that I need to optimize?
and how can I spend maximum time improving incredibly good at what you do. Right, the next video is me explaining how we created our agency roadmap video, which was a very difficult project to pull off. This video was not a documentary, it was like a collection of founder interviews, and this video had multiple call recordings to edit with. So we had to mix my A-roll with the interview snippets as well. There was a huge backend process where we took the transcripts using this AI tool called Descript. We printed it out, we uploaded into ChatGPT. We said, this is my A-roll, these are 15 interviews, tell us what should we pick from these interviews to fit it in my A-roll. And like Claude and ChatGPT played a huge role in the scripting of this, but I'm not covering that because this course is primarily around the editing part of things. But you'll understand the key elements of video planning and how you need to think and how do you understand what will matter most to the viewer. Let's watch. So the context here is that we are working on an agency video. It's a masterclass where I have a main A role, and then we have interviewed 14 agency owners. Each agency interview is anywhere between 30 to 35 minutes, and we've asked similar questions to all of those 14 people. And earlier we were about to release this video today on Thursday, but mostly this will be ready by Monday. So now the goal is that Thursday, Friday and Saturday, how do we make sure that this video has maximum retention, maximum takeaways and maximum positive reviews? So firstly, I will just revise some rules of editing that we have logged for the Cutting Edge School so that everybody gets a quick reminder. So rule number 1, if any person was to watch this video on mute, that person should be able to note down all the important takeaways. Rule number 2, anytime we want the opposite person to make some notes or some important thing has been discussed or a quote has been given or a phrase has been given or a mindset has been given, we need to flash it on screen, which acts like clues. So we have to give clue notes. Then we have to try to make sure that we add a cut every 3 seconds. Now it can be a jump cut of zooming in into the A-roll, or it can be a snippet of somebody else. In interview part this will not work, but basically in A-roll it should. And as an editor, the content developer, the storyboarding artist and the video editor, every person has to make sure that they keep their eyes and ears completely open. So whatever that they're showing on screen, their eyes should look very closely that whatever I'm showing, ये sense बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो आप अगर screen पे किसी को कुछ दिखा रहे हो, तो is it logical? Is it making sense? So if there are 3 people working on the video, right? So एक content developer है, शायद उससे कुछ miss हो जाए, तो storyboarding artist पकड़ सकता है. और अगर storyboarding artist को कुछ off लग रहा है, तो that person can report. अगर developer से भी miss हो गया है, artist से भी miss हो गया है, then the editor has to say कि भाई ये कुछ video में ऐसा चल रहा है, and I think this makes no sense. So now we will cover these principles one by one, but let me first show you how I edited this video. Okay? So firstly, I watched the first 5 minutes of the video and then I asked myself that in my hypothetical YouTube retention graph, what moments can be the spike moments? And abhi, the video that we've edited, this is in the order in which I have communicated something, so it is chronological. But let's just say instead of chronological, let's just have a new word for it. What if we were to make it like spikological, right? Where all the spikes are mentioned in the first 1 minute itself. All the important spikes are compiled together, and instead of following a chronology, you just follow spikology. So I watched the entire video and then I realized in my first draft, I realized that there was one scene that would get the maximum spike, and which was this scene. Because this is a big thing, like it is very rare to come across a video. Of course, you're not discussing all these things, but this part right here at 1 minute 40 seconds is a big deal. So I thought this has to come in the first 30 seconds. Okay? The checklist need to come instantly. So मैंने क्या करा, I shortlisted all of those parts, and the second edit, the first draft that I made was this one. So I called up all of my friends who are running legit 6 to 7 figure agencies with at least 4 to 5 years of experience, and I asked them, when should you start up a creative agency? Did you understand what happened? I took a moment
that I knew कि ये बहुत ही बड़ा USP है, बहुत ही बड़ा शॉकर है, और मैंने क्रोनोलॉजी को तोड़ के उसको पहले फिट कर दिया और इस तरीके से फिट कर दिया that now the sentence is flowing. Now I'll play more. I had too many opportunities that I could not handle. Every single month, I used to 3x my prices. Still, each and every client which used to come to me, they used to say yes. Then I realized there's a pattern which is forming that I can increase my prices, but I can also take a lot of clients. When you are a freelancer, you get good quality of clients. But what I have seen is when you have a proper agency and you have a good team of people working with you. I know, and everyone knows that if you want to work with those big companies, you need to have an agency, because big companies mostly work with agencies for a big project. What kind of services generate maximum income? AI agents. ये ऑफ सिंक था by the way. इसका फर्स्ट फ्रेम भी खराब है इस पार्ट का. Right, my feed is like filled with people talking about AI agents and YouTube. I read somewhere that YouTube is not competing with OTT platforms. If you can figure out how to grow other people's YouTube, I think a lot of people are now gonna start taking YouTube more seriously. It's just more work, but I mean it pays off. Video editing, maximum demand. As of this point, long form, short form is too. फिर ये कुछ वीडियो एडिटिंग के बारे में बताता है. Sessions take a lot of experience and a lot of time to explain. And I've compiled a list of important things. This is our first video on this topic. So what I did is I actually marked some areas. And then I created a second cut. Now in my second cut, this is how I made it. So I called up all of my friends who are running legit 6 to 7 figure agencies with at least 4 to 5 years of experience, and I asked them, when should you start up a creative agency? When I had too many opportunities that I could not handle, That I can increase my prices, but I can also take a lot of clients. Big companies mostly work with agencies for a big project. Did you see what happened? मैंने अनिक का सिर्फ वो पार्ट उठाया. could not handle. That I can increase my prices, but I can also take a lot of clients. Because after a point I realized कि भाई अनिक की वो पूरी कहानी एंड में बताएंगे, but this is a hook. I really want to quickly show, like 18 seconds हो गया, I quickly want to show. Big companies mostly work with agencies for a big project. What kind of services generate maximum income? AI agents, right? My feed is like filled with people talking about AI agents and YouTube. I read somewhere that I realized that even this part is not relevant. pays off. Video editing, maximum demand. As of this point, long form, short form is too cluttered. Good social media organic content is very much in demand because everyone can do Instagram today, but no one is able to do it right. So, for example, there's a lot of demand for scripting. Good scripts that. So I realized that even example is not relevant here because this is still the hook. This is actually not the main video. So finally, when I edited the proper thing, this is how it looked. So I called up all of my friends who are running legit 6 to 7 figure agencies with at least 4 to 5 years of experience, and I asked them, when should you start up a creative agency? When I had too many opportunities that I could not handle. That I can increase my prices, but I can also take a lot of clients. Big companies mostly work with agencies for a big project. What kind of services generate maximum income? AI agents, right? My feed is like filled with people talking about AI agents and YouTube. Video editing, maximum demand. As of this point, long form, short form is too cluttered. Good social media organic content is very much in demand because everyone can do Instagram today, but no one is able to do it right. And I've compiled a list of important things that you need to know before you open your first creative agency. खत्म. 50 सेकंड में हमने ये बता दिया कि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करा है, जितने भी टॉप चेहरे थे उनको दिखा दिया है और चेकलिस्ट भी दिखा दिया है. Now we have a very high chance that at least 50% of the people will watch this video after the 1 minute mark. So what are the key lessons? Number 1, do not restrict yourself to the first edit. बार बार वीडियो को देखते रहो. Every time you watch the video, ask yourself, can this 30-second part be better? Can this 10-second part be better? Is there anything that I can reposition? Is there anything I can add? Do not rely on your first drafts as the ultimate source of truth. Dusra, cut away anything that is extra in the first 1 minute. The first 1 minute is extremely important. Otherwise, people will have no incentive to watch till the end, and put people with high brand value. Okay? And then finally, I also realized that beach mein there are a bunch of things that made no sense when I was talking. So in the edit, everybody in this team has to open up their minds and ask, bhai, how should we tackle this? So let me give you an example. Not getting outdated at all. Totally depends on how good you are and what kind of markets you're targeting. I really cannot suggest on what you should do. So this is a conflicting statement, because the entire video is about what you should do. So ये मैंने गलत बोला है. So we should edit this out. I am saying that it completely depends on you and I cannot tell you what to do, but that's us telling that this video is useless for them. That too at the third minute itself. Then one more thing that these people and a company has, right? So once you have 3 months of runway of your own personal life, once you have enough money, and when I say enough, at least 3 to 4 lakh rupees in the bank account. ये point repeat हो रहा है. अभी मैंने 1 मिनट पहले सेम पॉइंट बताया था 3 to 4 lakhs का, तो ये पॉइंट रिपीट हो रहा है. तो रूल नंबर 2, कट एनीथिंग
that you feel is repetitive. ठीक है? Classes. We'll also have online classes who cannot come to Delhi. Here I'm talking about the cutting edge. We'll also have online classes who cannot come to Delhi. And we also do B2B trainings, by the way. So if you are a company of more than 100 employees and you want us to train you on. तो अब मुझे, when I'm watching it as a viewer, the point is this video is on people who are starting a business. और मैं यहाँ कह रहा हूँ that if you're running a company with 100 plus employees, which is so stupid. तो उस टाइम पे, वीडियो के टाइम पे I missed it, then Ansh also missed it, then Dikshita also missed it, and then Danish also missed it. So हमको क्या करना है एज अ टीम, हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ काम मिल रहा है तो यू हैव टू ओपन अप योर आइज एंड ईयर्स कंप्लीटली. क्योंकि अब जब मैं आराम से बैठ के वीडियो देख रहा हूँ तो आई रियलाइज कि भाई इस वीडियो का टाइटल है इफ यू शुड इवन स्टार्ट अ बिजनेस. सो व्हाई आर वी पिचिंग द B2B कंसल्टिंग टू अ पर्सन हु डजंट इवन हैव अ बिजनेस? Is this making sense? Because I can't see your faces, so I'm not sure if it is getting communicated or not. Yeah, makes sense. So you just have to be very logical when you're sitting on the editing table. Okay, now I'll give you one more example. How to decide what to do. So this is how the checklist looks like. This is not the complete list, but these are some absolute essentials. Before, I think this is still redundant. Okay, this is the checklist. Right. This is not the complete list. And this is the absolute essentials. तो भाई चेकलिस्ट तो एसेंशियल्स का ही होता है. अगर तुमने चेकलिस्ट बनाया तो पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया है? तो आई विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स लाइक दिस बिकॉज दीज आर अनस्क्रिप्टेड वीडियोज. व्हेन द वीडियो इज एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड तो कोई मिस्टेक नहीं होता है. बट जब वीडियो अनस्क्रिप्टेड होता है तो दी पीपल वर्किंग ऑन द वीडियो दे हैव टू बी वेरी वेरी ब्रूटल. ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रीफ ओवरव्यू. अब मैं एक्चुअली मैं लिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, आई हैव मेड अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ इट. And I will send a picture of this, but I would still recommend all three of you to write it down on a piece of paper because I want you to use your muscle memory to actually take a note कि आप लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो और किस लॉजिक की गलती कर रहे हो. ठीक है, now first of all खुशिका का पार्ट हमको डिलीट ही कर देना चाहिए. And by the way Ansh, I am 100% sure that there was so much of content that we could have added. We had 6 hours of interviews. और अभी क्या है कि I'll tell you how to do this properly. I think I did not tell you to sort of listen to the sentences very carefully. I'll also tell you how you can use Claude for this to do this faster. But worst case scenario, you and I will sit together and watch every interview again. I will teach you how to pluck out sentences. But just to set some perspective, we had 6 hours of content. This video has just 10 minutes of it. So out of 6 hours of content, Ansh, you could only find 10 minutes that were relevant. And I can guarantee just from mathematics that 10 minutes से ज़्यादा content पक्का निकल सकता था. Mostly जो content निकाला है that is based on the script, that whatever you are saying based on that. So I अब will जैसे किसी ने, अगर जैसे किसी एक creator ने बोल दिया है about this line and I could find the top 3 creators that have said this line, then I didn't pick the same content from another creator. Like जितना मुझे याद है, ये जो भी इंटरव्यूज थे उसमें कुछ लोगों ने एक ही टॉपिक के बारे में बहुत लंबा खींच के बोला है. लाइक इवन दानिश एंड आई डिस्कस. दिव्य का इंटरव्यू जो था उसने एक ही आंसर जो किसी और क्रिएटर ने 10 सेकंड्स में दिया है उसने वो 4 मिनट्स में दिया है. Yeah, I did that. So like even if I was watching Noha's interview again, I couldn't find anything that was relevant to the script. So पूरा 26 minutes का इंटरव्यू वेस्ट था एक तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले अपने पार्टनर के बारे में बोला. देन मैंने उनका वीडियो फिर से देखा जो प्रतीक्षा ने देखा था. उन्होंने मोस्टली एडिटिंग के बारे में बोला. अब एडिटिंग के बारे में आपने बताया था कि दूसरे लोग भी हैं, मटर मीडिया, उन सब ने, उन्होंने एडिटिंग के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला. उनका बिजनेस एडिटिंग का था. I'll tell you how to approach it. Once you see how I am looking at it, then you'll have some better idea कि कैसे information को extract कैसे करना है. एक लंबे इंटरव्यू में से कैसे information को निकालना है, उसको कहाँ fit करना है. But पहले मैं सारे basics बता देता हूँ. सबसे पहली बात, when I say when to start an agency, what services you need to sell, तो you need to make a slide for this. People should know that एक checkpoint आ गया है, तो आपको लिखना है question 1, question 2. खुशिका का पार्ट हमारे को इंट्रो में से डिलीट करना होगा. वेदिका का जो हुक है उसमें फर्स्ट फ्रेम गायब है, लिपसिंग भी ऑफ है. एंड फॉर एनी टाइम वी आर चेंजिंग द सीन ना, तो एक क्लिक साउंड डाल देंगे. और म्यूजिक मैं बाद में सेटअप कर लूंगा, पहले एक बार ए रोल कर दे, बट म्यूजिक हमारे को बिगनिंग में थोड़ा सा डालना पड़ेगा.
anytime the footage shifts to a person, just have a click sound. Motion array में मैंने अभी डाउनलोड किया, बिल्कुल परफेक्ट क्लिक साउंड है जो मैंने प्लेबुक में भी यूज किया था. 2 minute 13 seconds. 2 minute 13 seconds. हाँ, अब जैसे ये पार्ट है, actually delivering creative work. To be very honest, ये नहीं चाहिए. ये जो पार्ट्स है ना, you can just cut it out. ठीक है. Now someone my plate, so I had to take that up and had to leave the agency. Which means your evolution as a creative person should look like this. First, you become a freelancer in a. This evolution ka storyboard is highly important. It is absolutely the most pivotal answer. If I'm giving a question, इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ by the way, तो इसका storyboard होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Then मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट. मैंने फीडबैक शायद स्लैक पे डाल दिया था, बट ये चेकलिस्ट नहीं है, ये बुलेट लिस्ट है. टॉप फ्रीलांस डोमेन्स. टर्न योर पैशन इनटू अ फ्रीलांस करियर. पहली बात, टॉप फ्रीलांस डोमेन्स के नीचे टर्न योर पैशन इनटू अ फ्रीलांस करियर कहाँ से आ गया भाई? ये फ्रीलांसर्स ही है जो अपना एजेंसी खोलने वाले हैं. तो यू कुड हैव रिटन समथिंग लाइक टॉप फ्रीलांस डोमेन्स फॉर एन एजेंसी और फॉर अ न्यू एजेंसी. टर्न योर पैशन इनटू अ फ्रीलांस करियर कहाँ से आ गया? ये वीडियो ही उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसर कर चुके हैं, वो एजेंसी खोल रहे हैं. और दूसरा, ये चेकलिस्ट नहीं है. नहीं अंश, no, you're telling about what a freelancer should do. It's not about agency, ये वाला checklist. Here you are suggesting if a new freelancer is starting. Naturally passionate about. And this can. Acha, so I'm saying you have to do something you're naturally good at. Become a freelancer in a domain that you're naturally passionate about. And this can include fields like social media management. Okay, ठीक है. So फिर हमको ये करना चाहिए, top freelance domains, turn your passion into a. You should write examples of top freelancing domains. Best options or popular options for freelancing domains. Because see, turn your passion into a freelance career के नीचे ये checklist ऐसा लग रहा है ये heading है. So the way I see it is that here is a checklist that helps you convert your passion into a freelance career. ये एक checklist है और आप इस checklist को अगर follow करोगे तो you can turn your passion into a freelance career. But हम दे रहे हैं a list of domains you can explore. तो ऐसे कर देते हैं top freelance domains for new freelancers. Then 1, 2, 3, 4. Because ये checklist नहीं है, it's a list of possible options. So list and checklist के बीच में वो difference होना बहुत जरूरी है. This difference you understood ना? List versus checklist. Yeah. फिर 250. How to choose a career video. जब भी यू आर मेंशनिंग अ वीडियो ना, हाउ टू फाइंड अ करियर इन 2025, सो हम चाहते हैं कि उसमें एक वीडियो का एक ग्लिम्स दिखे कि हमने कुछ कवर किया है. सो इंस्टेड ऑफ पिकिंग जस्ट पार्ट्स फ्रॉम योर हुक्स, यू शुड पिक अ पार्ट विच इज एक्सट्रीमली वैल्यूबल. मतलब हाउ टू फाइंड अ करियर में अगर कोई आदमी देख रहा हो, देख कि कोई मिड जर्नी का एनिमेशन लगेगा ये क्या खेल खिलौना टाइप वीडियो है. बट इफ आई वर टू गो हियर and let's just say I go here and check how to choose career Ansh Mehra. ठीक है. So you sit and understand कि भाई इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा डेटा दिख सकता है या कोई अच्छा चेकलिस्ट दिख सकता है. तो मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल कर रहा हूं. ठीक है, अब मैं आगे चलते हैं. हाँ, अब जैसे ये वाला पार्ट है फास्ट करियर का, मैंने पूरा ना फ्रेमवर्क दिखाया था. 10-step प्रोसेस यहां पे मैंने दिखाया होगा. तो दिस पार्ट एक्चुअली मेक्स यू फील कि चलो ठीक है, वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू है. सो डोंट शो माय फेस. इट इज बेस्ट टू शो द फुल फॉर्म्स ऑफ सम फ्रेमवर्क. आई थिंक एंड में ये पूरा लिस्ट बनेगा, जितना मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, जैसे ये है. सो यू कैन शो दिस पार्ट. एक सेकेंड, ये फास्ट करियर वाला दिखा सकते हो. ठीक है,
उसके बाद ये न्यू स्किल वाला फ्लो चार्ट दिखा सकते हो। तो ये सारे सीन्स दिखाओ जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूबल है। दिस यू हैव टू रिपीट फॉर एवरी अदर वीडियो, क्योंकि सब वीडियो में बस मैं टाइप कर रहा हूँ, विच मेक्स नो सेंस। फिर आते हैं हम 3 मिनट 2 सेकेंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इवन वीडियो एडिटिंग। इसमें दिस चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर 3 सेफ क्रिएटिव फील्ड्स दैट यू कैन वर्क विद, तो इसका लिस्ट होना बहुत जरूरी है। फिर मैं बोलता हूँ दैट यू कैन चूज अ वर्क, इसको एडिट ही करना है, ये तो हटेगा ही पूरा पार्ट। A big business either save time or make money. You need to have a service that helps a business either save time or make money. This is a very very fundamental concept जो हमारे को 110% डालना ही डालना है। ये फ्रेज है, प्रॉपर फ्रेज है, ठीक है। फिर जब मैं था ना, I actually realized that what if we actually convert this thing into something like this, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इसमें कितना एक तो स्पेस वेस्ट हो रहा है, ऊपर नीचे का स्पेस वेस्ट हो रहा है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डीपी और ये 2 लाइन से भी बहुत स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो मैं ऐसे विजुलाइज कर रहा था कि व्हाट इफ वी टेक दिस एंटायर वीडियो, ठीक है, इसको मैं पूरा एंड टू एंड रखता हूँ, ठीक है, ऐसे रखा मैंने, एंड देन वी क्रिएट अ ब्लैक बार। तो मैं इसको ऊपर रखता हूँ, इस बंदे को ऐसे, एंड देन आई टेक दिस एज अ ब्लैक बार, एंड आई एम जस्ट डिजाइनिंग ऑन द स्पॉट बाय द वे। मैं हो सकता है डिजाइन रॉन्ग ऑल्सो, सो यू कीप इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन्स, ठीक है, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ, सिर्फ 2 लाइन्स। एंड देन व्हाट वी शुड डू इज वी शुड टेक दिस सेंटेंस, ठीक है, कॉपी करके, एंड देन फेड एंड फेड आउट करके वी शुड जस्ट एड इट हियर इटसेल्फ सो दैट वी डोंट कंज्यूम दैट हाइट। तो ये 29 पिक्सल्स है ना, इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम स्पेस भी कम लेंगे, एंड देन वील बी एबल टू फिट मोर इन्फॉर्मेशन इन 1 सिंगल स्लॉट। क्योंकि वो जो लेआउट है ना, उससे इतना स्पेस वेस्ट हो रहा है, छोटा सा वो इंसान दिख रहा है, पता भी नहीं चल रहा। तो अपूर्व एंड डीपी भी मुझे रियलाइज हुआ कि रिडंडेंट ही है, क्योंकि उसका चेहरा मुझे दिख ही रहा है। तो डीपी तो आई थिंक उस जगह काम आनी चाहिए थी, मे बी जहाँ पे उसका चेहरा दिखे नहीं। एंड दिस सेंटेंस फेड्स आउट टू बिकम दिस सेंटेंस, एंड देन वंस यू शो दिस एक बार ही, तो बार बार ब्रांड्स का नाम दिखाने की नीड ही नहीं है, विल जस्ट कीप दिस ओनली। एक और मेरे मन में ये आइडिया आ रहा था कि जब वो आंसर दे रहा था ना आदमी, तो मैं खुद ही भूल गया देखते देखते कि ये कौन सा आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक है। लाइक आई जस्ट कुड नॉट फिगर इट आउट, सो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि इज देयर अ वे दैट वी कैन पुट द क्वेश्चन आल्सो। अब जैसे ये जो अपूर्व वाला पार्ट है, जैसे दिस आइदर सेव टाइम और मेक मनी, इट इज लिटरली एज सिंपल एज दैट। So what's the need of the hour? तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू चूज द राइट सर्विस, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चंस को लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं एंड ये नेम और उसको राइट पे रख सकते हैं। तो मैं तो सोचा था ये कर देते हैं, अपूर्व चौधरी, फाउंडर एंड क्रिएटिव हेड एट Atomic Content Studio. That's all. और ये ग्रे ना बहुत ही ज़्यादा डार्क था, तो हाँ बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ जैसे मीडियम, और ये मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से। तो अब क्या हो रहा है कि कम से कम आई एम एबल टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि अच्छा ये किस क्वेश्चन की बात भी क्या कर रहा है, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि ये क्या आंसर दे रहा है। एक और पॉइंट था इसमें कि लाइक इफ वी स्केल अप दिस, तो उनका ऑलरेडी क्वालिटी नहीं है इतना बेटर, तो विल इट बी ओके? तो अब मेरा फेस डाल दो। अगर इफ मैं एक और लेआउट ये सोच रहा था, बाय द वे मैं इसको जब पूरा स्केल किया ना, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि जो वो वाला स्टाइल है हमारा स्प्लिट स्क्रीन, ये पकड़ा, इसको मैं कर देता हूँ फिल, I'll keep this here, ऐसे, फिर इसको पकड़ा, इधर रख दिया, और मेरा चेहरा इधर डाल दिया। तो उससे क्या होता है, एक रिएक्शन भी मिल जाता है। अब वो चाहे ब्लर आउट हो जाए, इट्स कंप्लीटली ओके। एंड व्हाट आई वाज आल्सो थिंकिंग वाज दैट, अब जैसे अमन ने इतनी एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि हम ये सब सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है,
तो बेसिकली क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट पे उस वीडियो में कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज शुड यू सेल। तो अमन बोलता है कि हम ऐसे ऐसे है, हम ये सब कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स हम डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंसी सर्विसेज, ऑफ क्रिएटिव एजेंसी सर्विसेज, क्योंकि वो एक्चुअली में एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बड़ा कर दूं एंड देन यहाँ पे मीडिया एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये मीडिया एंड मार्केटिंग की कैटेगरी में है, और ऐसे करते करते हम और भी काफ़ी सारे कर सकते हैं। तो वो ये मीडिया एंड मार्केटिंग में है, वो सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में है। तो लेट्स जस्ट से मैं इसको यही रखता हूँ, ठीक है, मैं मीडिया एंड मार्केटिंग करता हूँ एंड देन इसको मैं ऑटो लेआउट में डाल के एक टैब में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन लेट्स जस्ट चूज लाइक अ डिसेंट कलर। इसका मैं पैडिंग लेफ्ट और राइट से बढ़ा के, और नीचे का पैडिंग हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एंड कॉर्नर रेडियस मैंने 10 कर दिया, इसका स्केल मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पर इधर रख दिया, ठीक है। एंड नाउ व्हेन ही सेज, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या मीडिया एंड मार्केटिंग को, अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिव? हाँ, तो ये इधर आ गया, यस, ठीक है। एंड देन ही सेज दैट वी मेक कस्टम एड्स। तो no, he's saying custom ads, so you just he's saying we make custom ads, so custom ads for FMCG brands, stuff like this. तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ एंड देन इसी को पकड़ के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, UGC कंटेंट, और इस तरीके से लाइन हाइट बढ़ा के इसको आप ऊपर ऐसे बढ़ा दो। एंड जैसी इन द स्टोरी बोर्डिंग अगर आपको लगता है कि भाई इतना ही हाइट है मोस्ट कंटेंट का, तो उसको ऐसे बीच में रख लो। एंड देन व्हाट वी कैन आल्सो डू इज कि ये जो फ्रेम है इसको पकड़ के कर दो राइट, ठीक है। और ये जो अपूर्व चौधरी वाला पार्ट है इसको ग्रुप को पेस्ट करके यहाँ पे रख दो ऐसे। तो जो ऑडियंस बैठ के देख रही है उसको रियलाइज हो कि अच्छा ये एग्जाम्पल है, ये इसके पॉइंटर्स है, और ये आदमी है, इसने ऐसे ऐसे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। Are you getting my point? So we go from here where the audience has no clue कि ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्वेश्चंस जब उस टाइम पे मैंने पूछे तो कुछ और थे, इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ और थे। स्पेस यहाँ भर भर के लिया जा रहा है। एंड बाय द वे 5000 फॉलोअर्स हो वो सिर्फ उनके डालने जिनके 100K से ऊपर है, उससे कम के नीड नहीं है बताने की, बिकॉज इट्स नॉट एडिंग टू द वैल्यू। बट यहाँ पे जैसे अपूर्व चौधरी है, तो अपूर्व चौधरी के आगे व्हाट वी कैन डू इज एक्सपीरियंस डाल सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में कि इस बंदे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब एक ऑडियंस को जो इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू मिल रहा है ना, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि अच्छा ये है, अब वो नोट्स बना रहा है, उसको पता चल रहा है ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो इसको दीक्षिता मेक समथिंग लाइक दिस फॉर द वीडियोस, ठीक है, चाहे टाइम ही लगे। बट सी अब अगर एक हम महीने की 4 वीडियोस बना रहे हैं तो वो वीडियोस हैव टू बी रियली रियली गुड। अच्छा, दूसरा मैं 359 के आगे आई थिंक जो रूट होता है ना, रूट, ये जो हैशटैग होता है ये रूट स्पेस #1 होता है, हैशटैग रूट 1 नहीं होता। तो हैश इज द नंबर, इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर द फ्रेज नंबर। रूट नंबर 1 मतलब रूट #1। Then 527. So you will pick say Instagram short form infotainment. ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था कि नीश कैसे सिलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म। ये तो इसमें यू कुड हैव मेड अ फ्लो चार्ट। इंस्टाग्राम करते, इंस्टाग्राम के अंदर तुम कैराउजल्स, रील्स, लाइव्स ऐसे कर सकते थे। फिर रील्स के अंदर यू कुड हैव पिक्ड इंफोटेनमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें तो एक एक को तुम ग्लो करवा सकते थे। जैसे मैं बोलता हूँ फाइनेंस, मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस, बट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस यू कुड हैव शोन मल्टीपल नीशेस, और उस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ऐसे ग्लो करके दिखाओ। सो यू शुड हैव डन लाइक अ ब्रेक डाउन कि ये नीश का ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है। देन 534 very very good at what you do, that itself would take to infotainment finance. That is the level of depth you need to have in your niche, right? And you have to become very very good at what you do. That itself would take 2-3 years. And once you see that, let's just say
You are working 5 hours a day and you are selling 1 lakh 2,000 rupees. That is. अब ये जो मैं बोलता हूँ 5 hours a day at 1 lakh या 1,000 rupees जो भी है, you should have shown a proper math behind this कि ये multiply हो रहा है, इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ रहा है. वरना जो आदमी सुन रहा है वो तो जोन आउट कर जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है, क्या मैथ बोल रहा है. Means you have officially cracked the skill and you have enough customers and now you need to think about 100 rupees for every reel and you're working 5 to 6 hours every single day. This means you have officially. हाँ, तो अब यहाँ पे you could have added like a checklist कि इतने घंटे हैं, इतने मेरे clients हैं, मतलब officially you are ready to start your business. फिर मैं 6 बोलता हूँ कि working in the business versus working on the business, such an important point कि मतलब ये बहुत ही जरूरी point है. Completely missed in the storyboard. A lot of people start working in the business, but eventually you have to build systems, you have to build a team, you have to build a company, you have to build relationships, and that is you working on the business. Another route could be you working for 2 years in another agency. So अब मैं बोलता हूँ another route, ठीक है, मैं route 2 पे आ गया हूँ, तो route 2 का slide ही नहीं है. route 1 का slide डाला, route 2 का slide ही नहीं डाला, तो inconsistencies. फिर मैं 750 में बोलता हूँ जब complete होता है and you're making a lot of money, the first step you need to, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे शुरू price yourself and then after 2 years of working in another agency you start your own thing. But let's just say you are in the first route and your rates have hit a ceiling and you're making a lot of money. The first step, ये भैया route 1 की बात हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे आ रहा है. मतलब ये route 2 लिख के working at an agency लिख दिया है और नीचे route 1 का डिस्कशन चल रहा है. नहीं, आई थिंक यहाँ कंफ्यूजन हुआ है बिकॉज जो स्क्रिप्ट था जो अंश ने भेजा था, लाइक रिटर्न स्क्रिप्ट, उसमें जो हाईलाइटेड पार्ट था आई थिंक दीक्षिता ने उसी पे काम किया है एंड शी हैजंट सीन द प्रीमियर वाला पूरा फाइल जिसमें एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स थे. सो दैट्स व्हाई उधर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा एंड इसलिए वो इधर उधर हो गया. बट आई थिंक जितना भी वो स्क्रिप्ट में था रिटर्न वाला, उस वाला आई थिंक दीक्षिता ने सब कर दिया. Got it. तो अब अंश you have to make sure that you watch the video with Dikshita. See, it is always recommended that you sit the actual role and not just the script, and you have to watch the video with her. Okay. Like, do you realize कितना कुछ मिस हो गया? कितना कुछ मिस हो गया? And मैं by the way अभी 7 मिनट पे हूँ. तो a lot of things were missed out in this. अब मैं आता हूँ 750 पे हम आ गए. फिर एक पार्ट मेरे को ट्रिम ही करना है. दिस वाज कंप्लीटली एस. बीच में इसमें बाय द वे बहुत सारे इश्यूज थे बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग ऑल ऑफ देम. अभी मैं सिर्फ डील ब्रेकर्स की बात कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि भाई ये तो प्लीज ठीक कर दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी मैं बिल्कुल स्किप मार दिया. मैं 11 मिनट पे आ गया क्योंकि मुझे पता है ऐसे तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा. तो मैं 1050 पे आ रहा हूँ. A lot of agency owners that I spoke to, they actually think in years and decades and not even months. A lot of यहाँ पे अंश जो मैंने पॉइंट बोला है that they think in terms of years and not decades. In your mind, do you remember any example of any creator जिसने इस पॉइंट पे बात करी थी? No, I don't think so. Number 1 was विश्वास. विश्वास का प्रतीक्षा ने देखा था, so like I refer to the notes only. Correct. So वो मिस हो गया. ठीक है. दूसरी चीज थी मटर मीडिया. मटर मीडिया में वो बोलता कि we only think long term. दिव्य ने भी बोला था we only think long term. यहाँ पे anybody who's talking about long term relationships, मेरे माइंड में ऑलरेडी 3. अमन ने बोला था कि हम नुकसान भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर हमारा क्लाइंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो. आई थिंक ये पॉइंट दिव्या ने भी बोला था. वो मिस आउट हो गया. अब आते हैं हम इधर. मैं बोल रहा हूँ because as I said, you just getting your first client should not be a problem because as I said, you should only open an agency when you yourself are overflowing with work. But in case you want to do like an outreach campaign and you want to do like email campaigning, you can always check out my video on cold. अब जैसे ये वाला इससे much better snippets है कोल्ड ईमेलिंग वाली वीडियो में, जहाँ पे मैं पूरा चेकलिस्ट दिखाता हूँ. तो उसको प्लीज डाल देना जहाँ पे चेकलिस्ट दिख रहा हो, कुछ वैल्यू दिख रहा हो वीडियो में कि हाँ ये वीडियो. और सेम फॉर दिस वन. नोशन के वीडियो में ये स्निपेट डालना तो बिल्कुल सेंसिबल. ये सीन इतना जल्दी आता है और इंस्टेंटली कट हो जाता है, तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो इसका भी स्निपेट ठीक होगा. देन 15 इसका भी स्निपेट ठीक होगा. इससे मच बेटर स्निपेट्स है लिंक्डइन की क्लास में. ठीक है. अब आते हैं हम 1324 पर.
1324 मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ has specifically mentioned the point about building great relationships. The people you are working with, like what are their problems, what are the things that they want to improve, or where they want to spend less time. 100. ये जो आंचल का स्निपेट है, आंचल is talking about how do you solve better problems, how do you decide कि सामने वाले को क्या बेचना है. तो वो ये बोलते हैं कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझते हो, सामने वाले का, इसमें रिलेशनशिप का नहीं है. अब आते हैं दिव्या पे. 100%. So not 100% should have been trimmed. all relationship in general, but when you work across domains, across clients, you'll recognize that these are 10-15 clients. These are 10-15 people who have really strong networks, who are really there to help you. You don't do it for every of your. तो दिव्या का एग्जांपल परफेक्ट है. अब आते हैं the entire portfolio, which really wants you to win, and you do anything for them. Most of our brainstorming sessions happen. अब जो नोहा बोल रही है अंश, इसके रिलेशनशिप से क्या ताल्लुक है? आई हैव नो क्लू. आई विल जस्ट प्ले द क्लिप. मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ. मे बी आई विल बी एबल टू सी इट नाउ. Most of our brainstorming sessions, team members, and with all our team members, like all the brains are on deck, right? And that's when like we come up with some of the nicest ideas I have probably ever heard, and then we pitch them, and sometimes they get approved, and we're on our way to making them, and we make them, and then they're just not approved. They don't click, or for whatever reasons they don't want us to post, and that's when most of our team members like take the hit. But I think how we balance that out as an agency, it helps. Why? Because we sort of have a reasoning behind it. Ki, "Okay, bro, like the brand really doesn't want it, and we are here to cater to the brand." And then someone who comes from a power position of. इसमें अंश रिलेशनशिप्स की कहाँ बात हो रही है? आपने लाइन बोली है रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड योर ए प्लेयर्स. तो ए प्लेयर्स में अगर उनकी खुद की टीम की बात हो रही है तो नोहा सेड बैकिंग अप फॉर देयर टीम. Part of the environment offline. Focus a lot on building your relationships with your early customers and your core A team. Every single agency owner that I spoke to has specifically core A mentioned the team point basically about it. because नोहा ने स्पेसिफिकली बोला है that अगर कोई क्लाइंट मना कर दे तो they as a founder stand up for them. समझ गया. Now I'll tell you one more framework. If I am giving a sentence, if I'm putting up a question, उस question में 80% of the question is focused on building relationships with your customers, and A team वाला part मैंने एक छोटा सा एक plug किया है. Now the answer that you've given for this question, you picked 3 creators, जिसमें आंचल का answer was not relevant, दिव्या का answer was relevant, but नोहा का answer is double than दिव्या and आंचल. So now you have to ask yourself कि भाई जो टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन में उसमें ज्यादा वजन इस बात पर है कि कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप डालना है, और अपनी ए टीम का अच्छा है, वो भी एक अच्छी चीज है, बट यू कैन नॉट गिव इट सो मच फोकस बिकॉज इमेजिन द व्यूअर इज गोइंग टू लूज ट्रैक. I mean उसका आंसर was way too long and अगर वो कट डाउन मैंने किया भी था तो वो मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है. में ऐड मत करो ऐसे में just delete it if it is not making sense, if it is not adding value, because what the core goal here is to keep retention, to only keep valuable things. Anything जो थोड़ा सा भी off हो गया, the viewer will shut off the video and go to the other video. तो एक भी सीन, एक भी सेंटेंस अगर हमको लगता है कि irrelevant है और कुछ कट हो सकता है, we should cut it. और अगर हमें लगता है कि ये क्रिएटर सेंस नहीं बना रहा है इस पॉइंट पे, तो उसको जबरदस्ती ऐड करना is not sensible. फिर अब हम आते हैं 1530. I mean नोहा का पॉइंट ए टीम के लिए या फिर फॉर टीम मेंबर्स आउट ऑफ ऑल क्रिएटर्स मेरे को बेस्ट लगा था, इसलिए आई एडेड इट फॉर दैट पॉइंट. बट या वो बहुत ज्यादा लंबा आंसर है. It is too long and it is not that relevant to the main question. A player वाला वर्ड तो मैं इतना हैरान हो गया कि you just pick that 1-2 word and वो पूरा इतना तुमने कथा बता दिया उस एक छोटे से पॉइंट के लिए. It's just not important enough. The main role of that question is relationship between the agency owner and the customers. वो A टीम वाला था, बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैंने उसमें बस डाल दिया था, 2 वर्ड, वो भी इतने फास्ट फ्लोइंग है कि व्यूअर ने सुना भी नहीं होगा कि A टीम बोला है अंश ने, इतना फास्ट गया है वो. तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द लेंस ऑफ अ नॉर्मल व्यूअर कि वो नॉर्मल व्यूअर को कितना कॉन्टेक्स्ट मिलेगा.
हम नोहा के आंसर सेकंड पार्ट में डाल सकते हैं, where we talk about building culture, where we talk about building a team, but it's not necessary कि उसको जबरदस्ती बस फिट करना है, just to fit it. फिर ये 15 ये फिर से बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग इनवॉइसिंग में मैं फिर से एकदम पे आ गया। इस पे मैंने कितनी सारी चीजें दिखाई थी इनवॉइसिंग के ऊपर, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद a lot of people ask me, will AI affect our work? Trust me, people are still relying on other people to get things done. Of course, एक तो will AI affect my work को क्वेश्चन प्लीज डाल दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन जरूर डाल दिया करो। Relying on other, ये आई एम प्रीटी श्योर ये इशू यही हुआ है कि अंश ने एरोल ही नहीं भेजा है। सो दिस अंश, यू हैव टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली कि जो वीडियो है, यू सॉ द वीडियो एंड यू रियलाइज कि भाई अंश ने स्क्रिप्ट के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बोला है, तो बेचारी दीक्षिता को पता कैसे चलेगा मैंने क्या एक्स्ट्रा बोला है? Okay. So how will she ever know if she does not get the files? So I thought that you have sent the files and you've had a call where you've played the entire video and you've discussed the entire video. तो सिर्फ स्क्रिप्ट से तो नहीं चलेगा। अगर मैंने स्क्रिप्ट एग्जैक्ट बोला होता और तुम्हें पता होता कि अंश ने वही बोला है जो स्क्रिप्ट में है, तो इट वुड मेड सेंस। बट व्हेन इट इज सो अपेरेंट कि ए रोल में इतने एक्स्ट्रा सीन्स है, तो उस सीन्स का इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा दीक्षिता को? अब यहाँ पे that is not going to be the case. तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट डाल दिया है, AI will not affect your work. Of course it will affect your work. ये सेंटेंस प्लीज डिलीट कर दो, ये सेंटेंस बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कि AI will not affect your, it will affect your work. क्वेश्चन ये था कि AI आ गया तो मुझे एजेंसी खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। सो उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। Speed with senior agencies, builders get up to speed with senior agencies. ये पॉइंट बहुत जरूरी था to add it on tech. In fact, AI will help a lot of new agency builders get up to speed with senior agencies because 1605 पे ये जो प्लीज भाई ये मत किया करो। Okay, another reminder that I really want to tell everyone, when you're doing storyboarding, you have to direct the eyes of the user to the main content. अब जरा इस फ्रेम को देखो, ऑटो रीफ्रेम, कटिंग एज स्कूल, सब्सक्राइब का बटन, 11K व्यूज, 1 month ago, फिल्मोरा, दुनिया भर का इसमें कंटेंट है। इसमें इंसान क्या देखे और कहाँ देखे, और अगर चाहते भी हो कि वो टाइटल को देखे तो ये मूव क्यों कर रहा है? इसको मूव कराने का क्या फायदा है कि हम उसको एनिमेट कर रहे हैं बार बार? बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि भैया क्या पढ़ना है, मुझे क्या देखना है। सिंपल इसमें थ्रोबैक वाला टेम्पलेट डालो, सिंपल टाइटल, सिंपल वीडियो, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि वीडियो का टाइटल क्या है और वीडियो में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद दिस पार्ट विल कंप्लीटली ट्रिम, दिस पार्ट वी विल कंप्लीटली ट्रिम, then we'll come here. इसमें एक तो सिंक पूरा ऊपर नीचे हुआ है। I'll just play this. Brand design, video production, digital marketing, SEO, whatever it may be, even web design. तो इसमें ना प्लीज एक तो ये सिंक रख लिया करो क्योंकि इट्स वेरी अनोइंग टू द आईज। वेब डिजाइन में सबसे एंड में बोलता हो, SEO का चेक मार्क पहले ही आ गया, तो वो सिंक होना बहुत जरूरी है। प्रीमियर प्रो से बस टाइम स्टैम्प कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो, बहुत इजीली हो जाता है। देन वी कम टू 1844। इसका एक और चेकलिस्ट बन जाएगा। You'll have to change the scene and you could have added GST, ये वो blah blah blah, and then you should do a throwback to the GST invoicing video also. That is very very important point. 1910 implement very strict contracts and have leverage in all of your conversations, have leverage through relationships with the invoicing team, with the finance team of your clients. This how वाला part is that we will now understand how exactly do you। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ अगला वीडियो क्या होने वाला है, तो कम से कम ये लिखो तो सही, नेक्स्ट वीडियो इतना, these are the questions that we will answer। मैंने इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। Plan your agency। तो ये दीक्षिता at 1932 lots of questions are there। फिर 1950 में बोलता हूँ कि कमेंट करो नीचे, जब तक 500 कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं डालेंगे, तो उसका सुपर आना बहुत जरूरी है। और फिर 2025 पे 20 मिनट 25 सेकंड पे गिव अवे डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, गिव अवे फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, वो डालना बहुत जरूरी है। तो ये था ऑडिट ऑफ द एंटायर वीडियो एंड आई वांट यू फोक्स टू स्टार्ट नोटिसिंग दीज थिंग्स बिफोर आई डू। एंड अब मैं आता हूँ अंश ऑन योर एंड, तो मैं सबके एक बार टेक अवेज और कॉल टू एक्शन बताता हूँ। अंश, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू,
ठीक है. स्टेप नंबर 1, यू कन्वर्ट माई अंश मेहरा का ए रोल इनटू अ ट्रांसक्रिप्ट यूजिंग Descript. वो जो Descript का ट्रांसक्रिप्ट है उसको कॉपी करा और उसको एक PDF में कन्वर्ट कर दिया. I've already shared it to you on Slack. Now you take that PDF, you go to Claude. Claude में जाके you upload that and explain Claude that hi, I am making a YouTube video compiling interviews of 14 agency owners, and one by one we have to decide that from Ansh's A-roll, what are the different topics that are being correlated to what these guys have said in their interviews. But step number 1 is read the entire transcript of Ansh's A-roll and categorize each and every important part, and within each category list out everything that Ansh has mentioned and remember everything, each and every bullet point. Then I will give you the transcript of all the 14 creators one by one, and you decide what from which creator can be fit into the main video. सबसे पहले क्या करना, मेरा ट्रांसक्रिप्ट डाल के उसको ये समझा देना और फिर सिर्फ 3 क्रिएटर्स पढ़ना जो तुमने उठाए हैं. ठीक है, तुमने क्या करना है, पहले उठाना है सहेली को, फिर अनिक को, फिर अपूर्व को. ठीक है, इन तीनों के ट्रांसक्रिप्ट को कन्वर्ट करना है. Descript में डालोगे वीडियो को. ठीक है, जो एक्चुअल इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्लिप को Descript में डालोगे, उसका ट्रांसक्रिप्ट निकलेगा. ट्रांसक्रिप्ट को तुम कॉपी करोगे, फिर गूगल डॉक्यूमेंट पे जाओगे, गूगल डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट करोगे, उसको एज अ PDF एक्सपोर्ट करोगे और क्लॉड में PDF डालोगे. और ये मैं PDF इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे को फॉर्मेटिंग करनी है. वी विल प्रिंट दीज PDFs. I will come to Kiran Vihar and scan the transcript and the PDFs on my own. I will read the transcript. And then I will sit with you and explain you कि अंश किस में से क्या पकड़ना है. जब सामने स्क्रिप्ट होगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल मार्क करके दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट का फिट हो सकता है. But just to save time, let's use AI to figure out what is relevant with what. Once you do this with 3 creators of Apoorv, of Anik and of ये कौन सा था, सहेली, चेक करना कि क्लॉड कैसे रिजल्ट्स लेके आ रहा है. अगर क्लॉड अच्छे रिजल्ट्स ला रहा हुआ तो हम उसको यूज करेंगे. अगर क्लॉड अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला रहा होगा तो बाकी सारे क्रिएटर्स का ट्रांसक्रिप्ट निकालना, सारे 14 क्रिएटर्स का ट्रांसक्रिप्ट, कन्वर्ट देम इनटू अ PDF एंड गेट देयर प्रिंट आउट्स फ्रॉम ब्लिंकिट. ब्लिंकिट से प्रिंट आउट्स मंगा के घर पे डिलीवर करा लो. I will come to Kiran Vihar. I will sit with you one by one, go through every interview of all the 14 people. If not all 14 people, I will do this for just 5 people with you. आगे के you can take it ahead once you just understand how Ansh is thinking. ठीक है? Okay. So that is your task. Now for Dikshita, you have this final render. मैं इसका जो Premiere Pro file है, ये जो exact Premiere Pro file है जो अभी मैं भेज रहा हूँ, इसमें थर्ड कट करके एक फाइल है. ठीक है, ये Premiere Pro फाइल आई एम सेंडिंग टू यू दानिश. ठीक है, यू जस्ट इरेज ऑल द डिसकलर्ड पार्ट्स जो ट्रिम आउट हो रहे हैं, ये ग्रीन वाले और ये वाले छोटे छोटे. ठीक है, वो ट्रिम करके यू रेंडर एन MP4 एंड यू सेंड दैट MP4 टू दीक्षिता. ठीक है, so that Dikshita does not end up storyboarding something which is already gonna get deleted. करेक्ट, ठीक है. So in parallel she will start storyboarding. So Dikshita, now you also start storyboarding, and Danish, you can also figure out कि actually Dikshita only can figure it out. Dikshita, you only can make this. It's very simple. Danish का भी need नहीं है. You just do your whatever you can figure it out. So you just finish the storyboard. तब तक मैं अंश के साथ clips figure out करता हूँ. And Danish, what you can do is, अगर मनीष आ गया, is Manish back? कल ही traveling, I think. Yes. ठीक है, इफ मनीष इज बैक तो मनीष को बोलो कि भाई सबसे पहले तो ये जो थ्रोबैक वाले वीडियोस है वो रेंडर करके रख ले, सो दैट दानिश कैन जस्ट प्लग इन प्ले. जितने भी पुराने वीडियोस है ना, ही कैन डाउनलोड, ही कैन फाइंड द राइट स्निपेट एंड जस्ट रेंडर दैट, वो जितने भी थ्रोबैक वाले हैं. ओके, ठीक है, वो मनीष को करने दो. एंड दानिश, यू ओनली फोकस ऑन कोल्ड प्ले नाउ, बिकॉज आई गिवन वीडियो बिकॉज मनीष छुट्टी पे था. ठीक है. Moving forward, this entire render can be taken care by Manish only. ठीक है, तो इसकी फाइल्स बस भेज दो आखिरी दीक्षिता को. आगे नाउ अंश एंड मनीष एंड दीक्षिता will coordinate for the cutting edge.
Alright, so with that we finish episode 4 of the video editing course at the Cutting Edge School. Do you now see why I take so much time to release each and every episode? It's because I want to make sure that these videos have the most valuable and practical editing content that you can find on YouTube so far. Comment below if you would like to see the next part of this video. Make sure you click on subscribe and hit the bell icon, because without your support it is impossible for us to sustain the costs of running such an expensive studio. I'll be waiting for your detailed feedback and support in the comment section below. I hope I find some good editors as well, because we really need more video editors. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra, and you were learning from the Cutting Edge School. If you enjoyed this video, then do check out this video of the same series. I am sure that it will help you even more.